you. Thank you so much, ma'am, for your warm welcome and your kind words for that sharing my brief profile with Thank you, ma'am. everyone. My pleasure. And I'm really obliged and honored for giving me this wonderful opportunity. So my heartfelt thanks to Navsari branch. It is indeed my honor that I am here today and I'm able to deliberate whatever little knowledge I have gained in my this professional journey of 10 years. Now it has almost 11 years. So it is indeed my honor and a privilege for me. And I hope I will be able to add some value addition to all of you who are attending this webinar today with respect to the refunds. So because I'm dealing in refund for past 11 years and I started my career with refunds, so this topic has always been very close to my heart somehow. And when GST came, so everybody was saying that, okay, now everything will be streamlined, everything will be online, ma'am. So we have to diversify into other aspect also. So actually we are only doing indirect taxation and mostly we are not into very much into compliance. So we are doing more of litigation and refund and other aspects. So we said, okay, let's see. But God has been kind to us, I should say. Refund has never been streamlined. It has been almost 4 years since we have seen the day of light. GST has seen the day of light, and we all know that refund has not never been an easier task in our erstwhile regime also, and even today also. How can we say refund means शेर के मुंह से खाना लेके आना? कैसे लेके आ सकते हैं आसानी से? So hats off to all of us who are consultants who are working in this field and especially in indirect taxation. I always say that GST means one of my colleague has given this slogan, "Ghar Sansar Tyago Tax," and it is actually because despite the fact we all are sitting in lockdown, I'm pretty sure everybody of us are working from home. And Yeah. our work timeline has increased from 8 hours to almost 16 hours or 18 hours, I don't know. Whenever we have time, we are in front of our laptops only. Whatever we are doing, either we are reading the notifications, we are trying to analyze the notifications which they have issued with a simple notification called the extension of the returns. And we all know that how much mathapachi we have to do to understand that what they have actually extended, what relief they have given. And similarly, I know the refund provisions, only two sections are there. I mean, 54 and 55 apparently. So I'll just start sharing my screen and I think we can start the formal webinar. Okay, so thank you so much. I'll just share my screen and so I hope all are able to see my screen. Yes, ma'am. Now it is fine. Yes, madam. Okay, thank you, sir. So refund. Apparently speaking, I know there are many sections. Anybody saying something? Yes, continue, madam. No, madam, you can continue. Okay. So I think your voice is not that audible to me. So major section of refund is section 54. 55 is for the special category of assessees. 56, 57, 58 are the procedural, interest and other procedural sections. But the major section or the parent section for refund is only one section, which I should say that only one section is the most important section per se refund, and that is section 54. 54, 1, it talks about what all we can have as refund, 2, and then 3. 3 talks about the only 2 scenarios where we can have the refund. And there are allied rules starting from 89 to 97A. So this is the list of relevant rules and sections. So you all can always refer to this one. These are the applicable forms that we have to come across or we are coming across every day whenever we are filing the refund application under GST. Earlier, it was used to be very simple procedure. Under service tax and under excise, it was never so much of form related issues and all those things, but still the complexity was not that much that we are facing in today's under GST regime. So these are the forms. So what we have to see, refund. First of all, what exactly the refund is and what is the legal provision. So section 54 subsection 3 is the most important provision where all kind of refunds are prescribed.
So why I'm saying all kind of refunds? Because this section is the only section which says that आपको किस किस का refund मिलेगा. Section 54 subsection 1 कहता है any tax, interest और any other amount आपने जो दिया उसका आपको refund मिलेगा. बट उसके लिए आपके पास में कुछ अलग circumstances है और बहुत important aspect है. अगर आप section 54 subsection 1 पढ़ेंगे तो वहां word आता है any person. That means any person claiming refund of any tax, interest if paid on any such tax or any other amount paid by him may make an application before the expiry of 2 years from the relevant date in such form and manner as may be prescribed. अब यहाँ लिखा है any person, so that means refund for refund you need not be a registered person, you need not be a taxable person, because law has given a provision that any person can come and he can claim the refund. But yes, when you are going to the portal, you all know that first of all, we have to get a registration done. Then only we will be able to operate the portal because everything is online. So apparently the word may be any person, but we have to understand that you have to be a registered person, because then only your ITC is available to you in case you are going to have a refund of ITC or any other amount that you have made the payment of the same. So payment must have been made on the portal itself. So this is again one thing that has to be seen in this respect, that whether they have written a word any person, but it is always has to be read as any taxable person or a registered person. Then comes 54.2 is for specialized agencies that we will be taking care under section 55. Then comes your main provision, the parent provision, which says subsection 3. So 54 subsection 3 talks about subject to the provisions of subsection 10, a registered person. From here you can see the difference. There it was any person, now it is a registered person, may claim refund of any unutilized tax credit at the end of any tax period. So at the end of any tax period, the wordings are written in this manner only, that okay, you are eligible to claim the refund after the completion of that tax period, and tax period can be monthly, quarterly, as you are eligible. So first, why it has said that any end of any tax period, so that whatever liability are there that you need to discharge, first you have to discharge them, then only you will be eligible to take the refund. Okay, I'll take care of this. So refund का मतलब है कि हमें कब मिलेगा? कोई भी registered person है, उसने अगर उसके पास में कुछ भी unutilized input tax credit है और वो भी at the end of any tax period, then he is eligible to take the refund of the same, provided that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in case other than. So what are the cases where we can say that yes, input tax credit refund will be allowed? So only two scenarios are being provided, यानी इन्हीं दो सूरत में हमको सिर्फ और सिर्फ रिफंड मिल सकता है, और वो क्या है? जब आप जीरो रेटेड सप्लाईज करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस. Why word important is without payment of taxes? Because आप यहाँ पे unutilized input tax credit का refund मांग रहे हैं. So when you are claiming a refund of unutilized input tax credit, so that means your export or your zero rated supply. Now zero rated supply can be used as a synonym for exports also. So whenever you are making a zero rated supplies, in that case, when they are being made without the payment of taxes, then you are claiming the refund of accumulated unutilized ITC. When you are claiming the refund of with payment of taxes and whatever amount you have made as payable as taxes, then that provision is called rebate. So that is a rebate provision. This is a refund provision. Second aspect is when there is an accumulation on account of rate of inputs being higher. And this is again plethora of judgments are there, and we have seen most of the judgments are taking the side of the revenue only, apart from VKC footstep from Gujarat High Court, where they have said that input word has to be elaborated in a manner that it is a generic term. And otherwise also, if you see the language, it is used in a generalized manner, that whatever inputs that are being used, they are on the higher side. And we cannot have a restricted definition or restricted meaning given to this input means only input, no services, no capital goods, nothing else. No, the intent of lawmakers was not that at all. But आज की date में we all know that yes, litigation is going on. VKC footstep, we have seen some relief, but again at the same time, Madras High Court has said a complete diversion view they have taken, जहाँ उन्होंने बोला है no, input services will not be eligible to claim as a refund under inverted duty structure. So second provision is for inverted duty structure, यानी जब मेरे inputs की tax rate higher है और मेरे आउटपुट का टैक्स रेट कम है, as we are expecting that in today's GST council meeting they may be taking some corrective steps in this inverted duty structure with respect to the garments,
and footwear, because there is majorly they are having this hindrance of inverted duty structure, and they are having a blockage of inverted services, input services, because they are not able to claim the refunds. So where the credit has accumulated on account of rate of tax on input being higher than the rate of tax on output supplies other than nil rated or fully exempt supplies, that means अगर आपकी nil rated है या fully exempt supplies है तो आपको inverted duty structure का कोई provision का benefit नहीं मिलेगा. वो तभी मिलेगा जब आपकी taxable supplies हैं, except supplies of goods or services both as being notified, जो कि notified है. पहले हम सबको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टेक्सटाइल बाहर थे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बेनिफिट से. After August 2018, where they have made some amendment and now they have made eligible, okay, textile industries are also eligible to claim the refund of unutilized, accumulated unutilized input tax credit because of the inverted duty structure. So two scenarios where we can have refund is, first is zero rated supply of goods or services or both. Second one is where we have an inverted duty structure. Now comes the proviso. First proviso, you have to see the drafting of this structure, this section. Subsection 3, then it starts with provided. Then second proviso, provided further that no refund of unutilized input tax credit shall be allowed in case where the goods exported out of India are subject to export duty. Please, please, please don't get confused. इससे आप इस बात पे बिल्कुल confusion मत लेके आइएगा कि export duty का मतलब with payment of taxes, जो आप IGST पे करते हैं. No, एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब है जो कस्टम के अंदर कुछ गुड्स हैं जिनके ऊपर आज भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है. बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव रहे ग्लोबल मार्केट में. सो वी डोंट चार्ज ड्यूटी. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ड्यूटी फ्री व्हेन दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड. But there are certain goods which we don't want to be exported out of our country where we have imposed certain amount of export duty. So we are talking of those items like coffee, tea, black pepper, cardamom, turmeric, basmati rice, groundnut in shell, animal feed, steel. These are few products under which you will see that under Custom Tariff Act, there is a certain amount of export duty applicable to these. So when there is an export duty under Custom Tariff Act, then in such scenario, despite the fact that you may have accumulation due to that export, but because there is an export duty, so you will not be able to claim the refund. Second proviso, provided also that no refund of input tax credit shall be allowed if the supplier of goods or services or both avails drawback. Again, this is a very, very, what should I say, litigative provision, because we have seen this higher rate of duty drawback. This provision talks about of only the scenario where there are two rates and one is higher and another is a lower rate. One higher means there you have taken care of your central taxes as well, means excise and other aspect, and your custom duty. And one is lower rate where only the custom duty aspect is being taken care of. So in case you are availing a higher rate of duty drawback, and that scenario was only up to 30th September 2017. 1 अक्टूबर 2017 के बाद से ये प्रोविजन बिल्कुल रिडेंडेंट है. आप जो मर्जी ड्रॉबैक आज की डेट में अवेल कर रहे हो, आपको कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिफंड लेने से. क्यों? क्योंकि आज की डेट में AIR के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेट है और वो है लोअर रेट. अभी हायर रेट का कोई प्रोविजन ऑल इंडिया टैरिफ रेट, ऑल इंडिया ड्रॉबैक रेट्स में जो नोटिफाई होती है लिस्ट, उसमें अब कोई भी हायर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है. तो ये वाला प्रोवाइजो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है, जो कि ऑलरेडी हमारा टाइम खत्म हो चुका है उस टाइम पीरियड के लिए, जुलाई 17 to September 2017 only. ROSL or any other thing that you are getting under the state levies, that has no restriction because it only talks about drawback in respect of central taxes and claim the refund of integrated tax paid on such supplies. That means either I can have the benefit of claiming the refund of input tax credit, or I can have the benefit of rebate under IGST under Rule 96. I cannot have both the provision at one point of time on the same supplies. That means मैं या तो एक्सपोर्ट विद पेमेंट करूंगी या मैं विदाउट पेमेंट करूंगी. विद पेमेंट करूंगी तो मैं IGST 96 रूल के अंदर जाके उस टैक्स का रिफंड, रिबेट जो होता है उसका रिफंड लूंगी, या फिर मेरे को ITC का रिफंड मिलेगा जो कि मैंने विदाउट पेमेंट के टाइम पे जो भी एक्यूमुलेशन है उसको मैंने यूज करने के, जो मेरा एक्यूमुलेटेड है उसका मुझे रिफंड मिलेगा. There is no restriction, that I have already clarified, and again you can see this clarification has been very, very clearly mentioned under Master Circular 125 dated 18th November also. Now, inverted duty structure, there was a notification which was amended by notification number 20/18
somewhere in July, and which specifies that yes, now there will be certain goods on which inverted duty structure will be allowed, and it was with effect from 1st of August 2018. Whatever liability you had up to 31st July 2018, you have to set them off. And whatever credit was left behind, that has to be lapsed, and there has to be a new register to be opened, and everything has to be new, and that will be having the provisions of refund. So there was certain thing. Again, there is a judgment from Gujarat High Court only that there is no provision of getting your refund lapse or getting your credit lapse. So that notification where your credit has to be lapsed with respect to textile has again been challenged, and I think it is still pending in Supreme Court. Otherwise, there is a case of Garden Silk Mills, which is in favor of assessment. Eligible criteria, we have all seen 55 if I talk about. So there is a specialized agencies of the UNO, multilateral financial MFIs, or any other organizations under UNO or United Nations, and consulates, embassies of foreign countries, or any other person or class as may be specified under section 55. For example, tourist. Now they have given an extended that even when a tourist will be leaving India, so he will be eligible to claim the refund of whatever GST he has paid on the goods which he's taking along with him, which he has consumed, that's okay. But with whatever goods he's taking along with him, so on that goods, whatever GST he has paid, he can claim as refund on the airport. And we all know for past 2 years how airports are well operating, or how people are traveling to each other, to different countries as tourism. So as of now, yes, there is a complete halt on these provision, but yes, this provision has been implemented and they had been notified also. Then comes one more aspect. This was everything that we have dealt up to now is with respect to your exports or zero rated supply. Then another concept is there where you are eligible for the refund is deemed export. Under deemed export, if you see and refer Custom Act, so there are many other items interested in that, but under GST, under section 147, only few supplies has been regarded which will be treated as deemed export, where either the recipient or the supplier, any one of them will be eligible to claim the refund of the tax incidence or the accumulated input tax credit as the case may be. So what are those supplies? Supply of goods by a registered person against advance authorization, or against EPCG scheme, supplies to your EOU, EHTP, STPs, BTPs, or supply of gold by a bank or a PSU undertaking specified in notification number 50/2017 under custom. So these are the only supplies that will be treated as deemed export under GST under section 147, which was notified with effect from 18th October 2017, wide notification number 48/2017, and the whole procedure, how you have to follow the procedure, how the refund will be claimed under Rule 89, Sub Rule 4, everything has been prescribed under notification number 49/2017. So these are two very, very important notifications with respect to your deemed export. So this is notification number 49/2017, where they have prescribed that in case of a supplies to EPCG license holder or advance authorization holder, and acknowledgement from the tax officers having the jurisdiction over such EPCG or advance authorization license holder, that okay, they have received the goods, or they have received such goods has been received by such license holder, has to be you have to get that the notification or get that acknowledgement or endorsement done. So in case of supplies to EOU, a copy of tax invoice supplied by the or issued by the supplier shall be duly signed by EOU. So he will be stating that okay, the service or the supplies has been received by him. Then undertaking by the recipient of deemed export that no ITC has been claimed. So either of them will be taking the benefit of refund. It is not that both of them can have the benefit of the refund. So undertaking by the recipient of the deemed export, in case if I am the supplier and I am bearing the incidence of tax, यानी कि जो भी टैक्स सप्लाईज पे लगना है वो मैंने खुद से बियर करा है, और मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट जिसने रिसीव करा है मैंने उससे चार्ज नहीं करा, तो वो एक डिक्लेरेशन देगा कि ओके, क्योंकि मैंने उस टैक्स के कंपोनेंट का इंसिडेंस नहीं बियर करा है तो मैं आईटीसी नहीं क्लेम करूंगा, और उसके बाद में वो ये भी लिख के देगा कि मैं रिफंड नहीं क्लेम करूंगा इसके ऊपर में, और जो सप्लायर है वो इजीली इसके ऊपर में रिफंड क्लेम कर सकता है. सो ही विल आल्सो गिव सच डिक्लेरेशन. सो द
in case the recipient is going to file the refund, so then supplier will be giving the declaration. In case the supplier has borne the incidence of tax, that means he has made the payment of tax and everything has been taken care by him, then the supplier will be giving a similar line of declaration that, okay, I have not borne the incidence of taxes and the other person is eligible to take the ITC and to claim the refund of the same. Then there is another concept. Okay. Then there is another concept of merchant export. So what does merchant export tells about? Merchant export who receive the goods, because we all know that initially refund procedure was not very smooth and there were lot many hiccups. नहीं refund time से हो रहा था process, online application नहीं चल रही थी, customs में भी बहुत सारी परेशानी आ रही थी. तो उन्होंने क्या किया, ओके कि जैसे पहले के टाइम पे फॉर्म्स होते थे कि जब आपको एक्सपोर्ट के लिए करना तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आप सीधा का सीधा फॉर्म के थ्रू आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना टैक्स पे करे. अभी हम कोई फॉर्म नहीं लेके आ रहे हैं, बट हम आपको एक रिलीफ दे रहे हैं. Whatever the rate of tax may be, आपको 0.1% और 0.05% टैक्स का पे करना है. 0.1% IGST जब आप इंटरेस्ट रेट खरीद रहे हो, 0.05% CGST एंड SGST जब आप इंटरेस्ट रेट खरीद रहे हो. और एक पूरा प्रोसीजर है जो 40 और 41 नोटिफिकेशन में लेट डाउन है. आपको वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हुए आपको सिर्फ ये मीगर सा अमाउंट टैक्स का डिस्चार्ज करना है और प्रोक्योर करने के बाद आपको विद इन 90 डेज एज इट इज आपके गुड्स एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए. सो अगेन उन्होंने ये बेनिफिट दिया. सो उससे क्या हुआ कि जो मेरा टैक्स नेट से 18% किसी के ऊपर लगता था, तो मुझे अब सिर्फ 0.1% उसका टैक्स देना है. तो बहुत छोटा सा अमाउंट होगा और मैं इस 0.1% का भी रिफंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूँ एज पर नोटिफिकेशन नंबर 125. दे हैव गिवन द प्रोसीजर एंड दे हैव गिवन द क्लैरिटी ऑन दिस आल्सो. नोटिफिकेशन 40 है कि यहाँ पे भी उन्होंने पूरा प्रोसीजर दिया है 40 एंड 41 कि बोथ सप्लायर और रिसिपेंट दोनों रजिस्टर्ड होने चाहिए, किसी न किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर होना चाहिए जो रिसिपेंट होगा. उसके बाद में जो सप्लाई ऑर्डर है उसका बाय द रिसिपेंट वो उसके पास होना चाहिए और शेल रिक्वायर द करस्पॉन्डिंग सप्लायर टू सप्लाई गुड्स एट अ कंसेशनल रेट एज पर द नोटिफिकेशन. और कॉपी ऑफ सच सप्लाई ऑर्डर शेल बी प्रोवाइडेड. उस सप्लायर को आपको देना है कि ओके ये मेरे पास सप्लाई ऑर्डर है जो इसके ऊपर में मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो वो उसकी कॉपी उसके पास होनी चाहिए. जो भी आप गुड्स प्रोक्योर करेंगे वो आपको 90 डेज के अंदर अंदर आपको उसको एक्सपोर्ट करना है. आपको जिससे आपने गुड्स खरीदे हैं उसका GSTN नंबर, उसका नाम आपको मेंशन करना है. आप कमर्शियल वैल्यूज चाहे तो जो आपकी इंफॉर्मेशन कमर्शियली आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको हाइड कर सकते हैं, बट उसके अलावा आपको सारी उसकी डिटेल आपको शिपिंग बिल में देनी होगी. तो ये सारी कंडीशंस हैं. Before I start with the relevant date, so I'll just open the house for quick queries. अगर अभी तक के किसी को प्रोविजन में कोई दिक्कत है क्या? So I'm just opening the house for 2 minutes. If anybody has any query up to whatever we have dealt with pertaining to the refund, definition of refund, what all has to be covered under the provisions of refund with respect to section 54 subsection 3. I hope सबको समझ, I'm able to make everything clear, whatever I'm speaking or whatever I'm sharing. Yes, ma'am. Yes, madam. Thank you so much, sir. Anyways, so I think nobody has any query as of now. So, okay. So very, very important aspect is relevant date. Now, relevant date has to be dealt with in two different manner. Why I am saying in two different manner? Because there is a very genuine reason for that. If you all have any access to your Bear Act right now, so still, if you have any access to your Bear Act, I just simply request you to open your section 54. In case you have, and in case you don't have, I'll not to worry. Everything has been written on the slide also, and I just wanted to highlight one important aspect, which at times the officers tend to ignore because it is in our favor. If you see section 54, subsection 14, after subsection 14, there is an explanation. That explanation 2, which says relevant date. Why this relevant date is important? Because please try to understand. In case of goods, when the ship or aircraft leaves India, that means not the date of your shipping bill, not the date of your invoice from where you have to calculate 2 years time period. When your goods leaves India, that means let export order date or your EGM date. So that is the date from where you have to calculate your 2 years time period. Then comes your second thing, relevant date in case of
services. So in case of goods leaving sea, so then ship. In case goods are exported by air, so aircraft leaving. And in case the goods are exported by post, so dispatch from the concerned post office. So you will get EGM from all these three different modes of your exportation. So that date has to be seen. Even when you are exporting the goods through land custom frontier. So there also, let's say if I'm exporting something to Nepal, so there are many borders like Raxaul, like Jogbani. So all these borders have your custom houses over there. And from there, you will get your EGM detail from there also. And then comes your very important provision, which we are talking of, section E. If you see relevant date, clause E. Now it has been written, in case of refund of unutilized input tax credit under clause 2 of the first proviso of subsection 3. That means now this clause E is only and only talking about your inverted duty structure, that how you have to calculate the refund. But kindly note, before 1st of February 2019, the wordings were something else. The wordings were from the end of the financial year, and whole subsection 3 was covered in that aspect. So that clause E was applicable despite the fact that 1 and 2 are taking care of your export of goods and services, but still clause E was there, which says that, okay, you have to file the refund for subsection 3 at your time. Relevant date will be calculated from the end of the financial year, and that definition was alive till 1st of February 2019 before this amendment was being made by this Amendment Act 2018. So after this Amendment Act of 2018 was incorporated in the Act, then only this E clause has been substituted. What we are seeing it today, that is only with respect to your inverted duty structure. Otherwise, your clause E was applicable for all kind of refunds that are being allowed or that are being eligible under section 54 subsection 3. That means, I'll just explain it with example. That means मेरा जनवरी 19 तक का रिफंड एलिजिबल था कब तक के लिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मींस मार्च 21 तक. सो मेरा जनवरी 19 का जो रिफंड था वो मेरा मार्च 21 तक वैलिड था, उसको मुझे रिफंड लेने के लिए. सो दैट इज द वे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली मार्च 18 का जो रिफंड था वहां पे भी आप उसको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट करोगे. तो जुलाई 17 से मार्च 18 तक का रिफंड अगर किसी का टाइम बार हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ दिस क्लॉज ई, क्योंकि वहां पे रेलेवेंट डेट उस टाइम पे 1st ऑफ फरवरी 2019 से पहले आपको 2 साल का टाइम पीरियड देती थी फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मतलब आप मार्च 19 से उसको कैलकुलेट करोगे. तो जनवरी 19 आपका जनवरी 21 तक नहीं, आपके पास में मार्च 21 तक का टाइम. So that was the important thing which I really wanted to tell you. Okay, deemed export, we all know that where a refund of tax is available in respect of goods, the date on which the return, आपको deemed export में उनको return file करना होता है, उस return तक के लिए आपको वहां से time period calculate करना है. Services के case में either services exported itself, tax और tax paid, आप या तो with payment करिए तो जो आपने tax pay करा, और आपने जो भी date of receipt of your payment वहां से आप 2 years रेकन करेंगे, क्योंकि सर्विस के केस में जब तक पेमेंट नहीं आती आपकी वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है. तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में 2 years टाइमलाइन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ योर FIRC, BRC और फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिसिप्ट. सो प्लीज टेक केयर, दिस रेलेवेंट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बिना आपको पता है आपके बहुत सारे रिफंड एप्लीकेशन जो है वो टाइम बार हो जाते हैं. रिफंड का सेस का रिफंड पहले अलाउड नहीं था, बट अगेन 2018 के बाद से अगेन उन्होंने उसको अलाउ करा, और आपको प्रोपोर्शनेट विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपोर्ट टर्नओवर, व्हाटएवर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यू आर यूजिंग लाइक योर कोल एटसेट्रा, वेयर यू आर पेइंग सेस, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके फाइनल प्रोडक्ट में सेस नहीं है, फिर भी आपको उस सेस कंपोनेंट का प्रोपोर्शनेट टू योर एक्सपोर्ट टर्नओवर आपको रिफंड एलिजिबल है. एंड यू कैन ऑलवेज रेफर टू द सर्कुलर नंबर 79/2018 which was issued on 31st of December 2018
और उसमें आपको पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशन दी हुई है कि आपको सेस का रिफंड कैसे कैलकुलेट करना है। अगेन आपकी टाइमलाइन, अगर आपके पास कोई जजमेंट है तो 2 साल उस जजमेंट से डेट आप देखेंगे। अगर आपने प्रोविजनली पे करा है तो जब आपके पास फाइनल प्रोडक्ट फाइनल असेसमेंट आ गई है तब से आप टाइमलाइन देखेंगे। अगर कोई और सप्लायर की जगह कोई और बंदा है जो अपने आप जो रिफंड ले रहा है, तो जिस दिन उसने रिसिप्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ करे वहां से उसकी टाइमलाइन शुरू होगी। अगेन वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस एनी अदर केस मीन्स आपको इंटरेस्ट रिफंड चाहिए, जो कि हमने देखा था सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 का जो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया था कि नेट पे लगेगा, ग्रॉस पे लगेगा, बहुत जगह डिपार्टमेंट ने आपसे टैक्स इंटरेस्ट लिया है, तो आप उस इंटरेस्ट को भी एलिजिबल हो अगर आपने ग्रॉस पे करा है कि नहीं नेट पे लगना है, और वो क्लैरिफाई हो चुका है, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। तो अगर आपको ऐसे किसी भी अमाउंट का रिफंड लेना है तो यहाँ लिखा है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, बट वो टैक्स नहीं होना चाहिए, टेक्निकली ये वर्ड होना चाहिए वॉट एवर पेमेंट। सो डेट ऑफ पेमेंट has to be read in clause H, which is your residual clause की और किसी केस में that has to be read with from the date of such payment from on which you have made the payment. From that date you will be calculating 2 years time period. Documentary evidence, obviously we all know that circular 125, that is called a master circular, there they have clearly elaborated, and now with circular number 135 they have made certain amendment in the format of annexure B. Now they have incorporated that okay आपको HSN कोड भी उसमें डालना है, ताकि अब आप जो सप्लायर, अगेन दिस इज अ वेरी ड्रेकोनियन प्रोविजन, मेरे बहुत सारे सप्लायर्स हैं जिनको एलिजिबल है कि उनको नहीं डालना है HSN कोड, और बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे भी होंगे जिनको 2 डिजिट या 4 डिजिट तक HSN कोड डालना है, क्योंकि पहले लॉ यही था। बट अगर आप वो फॉर्म देखेंगे तो वहाँ 6 डिजिट डालना है। दैट मीन्स अब मेरे ऊपर बर्डन है कि मैंने जो जो सर्विसेज ली है मुझे उनका 6 डिजिट पता होना चाहिए। सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी ड्रेकोनियन प्रोविजन, बट एज ऑफ नाउ दे हैव इनकॉर्पोरेटेड। तो अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो एक्सेप्ट हुए हैं आपके फिनेंस बिल 221 से, जो कि अभी नोटिफाइड होने हैं क्योंकि सब स्टेट से उनको कंसेंट मिलनी बाकी है। बट स्टिल ऑफिसर्स आर डिमांडिंग कि आप मुझे वो डिक्लेरेशन दो जो सेक्शन 16 के प्रोवाइजो की है, या आप अब जो है जो नया आपने चेंज लागू करे हैं उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अगेन एन एब्सर्डिटी बिकॉज दे हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि until unless the provisions are applicable or they are implemented, but still I mean, okay, we all know that if we have to get our refund expeditiously processed, then we are taking care of all these requests also, which is again beyond the statute or beyond the law as of now. So documentary evidence, I will not be spending much of the time because every document as per your refund application, type of your refund application, whether you are filing under 89.4 or 89.5, so that has been very, very clearly prescribed under notification number, circular number 125. And I have also incorporated here. One important thing is that, okay, for export of services, earlier we all know that FIRC or BRC was mandatory. But again, now with notification number 16/2020, where they have amended the rule and they have inserted a new rule of 96B. Now they say that, okay, even in case of goods also, you have to receive your remittances within the timeline that has prescribed under FEMA, that is 9 months. And given they have given some kind of relaxation because of this COVID-19 situation, that okay, for whatever export you have done up to a certain time period in the financial year 2020, that timeline has been extended to 15 months. So otherwise you have to get your remittances back within the time limit that has been prescribed under FEMA. That means पहले मुझे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए सिर्फ EGM देखना होता था क्योंकि मेरे गुड्स की मूवमेंट आप ट्रैक कर सकते हो। बट अभी उन्होंने 96B ला के ये कहा है कि जैसे आप सर्विस के केस में दिखाते हो कि हाँ आपकी FIRC आ गई, BRC आ गई, तभी रिफंड फाइल कर सकते हो, यहाँ पे आप रिफंड तो फाइल कर दोगे क्योंकि हो सकता है आपने ऑटोमेटिक रूट यूज करा है, तो आपको लेकिन एक डिक्लेरेशन है और आपको वो हमेशा वापस पुल बैक कर सकते हो अपना रिफंड जो भी उन्होंने आपको दिया है, अगर आपका रेमिटेंसेस विद इन टाइम फ्रेम दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर फेमा नहीं आता है, यानी कि 9 मंथ्स है जो कि नॉर्मल टाइम पीरियड। बट एक्सपोर्ट के लिए बिकॉज कोविड-19 की सिचुएशन बहुत अलग है, सब जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे अप टू आई थिंक आई हैव टू सी दैट एग्जैक्ट टाइम पीरियड, इट्स आई थिंक अप टू जुलाई 20 तक, जो भी 31 जुलाई 20 तक आपका एक्सपोर्ट हुआ है उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड 15 मंथ्स दिया है कि ओके हमें भी पता है टफ सिचुएशन है, तो यहाँ पे आप पैसा इस सारे एक्सपोर्ट का 15 महीने के अंदर भी आएगा तो भी आपका रिफंड देना है नहीं होगा।
SEZ के लिए एक अलग कंडीशन है कि अगर आप XYZ को सप्लाई करते हो तो आपको जो भी इनवॉइसेस है वो वहां से इंडोर्स होने चाहिए, यानी कि उनका कस्टम जो है, ऑफिसर ऑफ देयर कस्टम ऑफ SEZ वो उसको इंडोर्स करके देगा कि हाँ ये वाले गुड्स जो है इसने ये वाला कस्टम क्रॉस करा है SEZ को और ये उसने सामने वाले बंदे ने रिसीव करा है। और सर्विस के केस में क्योंकि कोई और डिक्लेरेशन नहीं दे सकता, तो एक मैंडेट होता है SEZ का कि उसको SEZ पोर्टल पे जाके उसने वॉट एवर सर्विसेज ही हैज रिसीव्ड उसकी सारी डिटेल्स उसको अपलोड करनी होती है। तो वहां से हम उसकी एंडोर्समेंट चेक कर सकते हैं। एक इंटरनल सर्कुलर भी है मुंबई से महाराष्ट्र का ही, कि वहां पे उन्होंने क्लेरिफाई करा है कि क्योंकि सर्विसेज का हमें नहीं पता और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है तो हम सर्विस को हम नहीं एंडोर्स करेंगे, आप सर्विस को सेल्फ एंडोर्स ही मानोगे, एंड दैट हैज बीन क्लेरिफाइड इन द बोर्ड सर्विस। डीम्ड एक्सपोर्ट हमने देखा ही है, आपको एक्नॉलेजमेंट लेनी है जुरिसडिक्शन ऑफिसर से, अंडरटेकिंग लेनी है रिसिपिएंट से जो रिसीव कर रहा है कि वो ITC अवेल करेगा या नहीं करेगा। इसी तरीके से सप्लायर से भी जो है एक अंडरटेकिंग लेनी है कि वो जो रिफंड तो क्लेम नहीं करेगा अगर उसने सप्लायर से पैसे ले लिए हैं, तो टैक्स का अमाउंट अगर उसने रिकवर करा है तो वो तो रिफंड नहीं फाइल करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए जब आप रिफंड फाइल करते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ साथ हमने देखना है कि एक सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, बट कुछ केसेस हैं जहाँ पे CS सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो कि पहले अर्स्टाइल रिजीम में फिर भी थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता था। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद वहां पे एक CS सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी जब आप रिफंड फाइल करने जाते थे। बट अब यहाँ पे अंडर GST क्योंकि हर चीज ऑटोमेटिक है, तो उन्होंने हर चीज ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ केसेस में उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे आपको कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और वो मान लिया जाएगा कि वो आपके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट जो है वो नहीं लगता है। वो कौन से केसेस है? अगर आपके एक्सपोर्ट का केस है या जीरो रेटिंग सप्लाई का केस है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ऑब्वियसली आपने इंसिडेंस बियर करा है तो वो है, या आपने कोई टैक्स पे करा है जो कि सप्लाई हुई ही नहीं है, तो उस केस में भी क्योंकि आपकी सप्लाई नहीं हुई है तो आपने इंसिडेंस पास ऑन करा ही नहीं है। देन अगर आपका सेक्शन 77 एप्लीकेबल होता है, यानी कि पहले आपने C+S दे दिया जबकि देना आपको IGST चाहिए था, इस सिनेरियो में भी क्योंकि इंसिडेंस आपने बियर करा है तो आप उसको आपको नहीं देने की जरूरत है सर्टिफिकेट। टैक्स और इंटरेस्ट विच हैज बीन बॉर्न सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट जिनको नोटिफाई कर रहा है सरकार कि ओके इस केस में यही मान लिया जाएगा कि इन्हीं की ड्यूटी है और इन्होंने ही उसका ओनर्स बियर करा है, तो इस केस में भी उनको यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन हम सबको पता है ऑनलाइन हो गया है पोस्ट दैट मास्टर सर्कुलर, नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। एंड रिफंड एप्लीकेशन हमें फाइल करनी होती है, उसमें स्टेटमेंट्स लगानी होती हैं, आपके एनेक्जर्स उसमें अटैच होते हैं, आपको सर्विस है तो आपको एक FIRC या BRC की डिटेल डालनी होती है, अगर आपके गुड्स है तो आपके एनेक्जर के अंदर सारे शिपिंग बिल की डिटेल, EGM की डिटेल, पोर्ट कोड की डिटेल, ये सारे के सारे डिटेल्स होने चाहिए। कुछ डिक्लेरेशंस है जो अटैच होती हैं, लाइक आई सेड कि आज की डेट में वो लोग सेक्शन 16 ऑफ IGST के प्रोवाइजो की डिक्लेरेशन मांगते हैं, और अदरवाइज जो बाकी डिक्लेरेशन है वो तो अपने आप में उसमें अपलोड होती है, और कुछ डिक्लेरेशन होती है जो आपको बना के आपको उसमें साथ में अटैच करनी है। और मेरा एक हम्बल सजेशन ये रहेगा कि आप हर एप्लीकेशन के साथ जो भी आप लगाते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए अपने पास में, क्योंकि एक बार एप्लीकेशन फाइल होने के बाद आप उसमें से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, बहुत बार दिक्कत आती है। और एक लेटर जरूर लगा दिया कीजिए कि आपने इसमें क्या क्या आपने एनेक्चर्स लगाए हैं, और उसका भी आप अपने पास स्क्रीनशॉट रखिए, ताकि जब कभी आपके पास में वेग से डेफिशिएंसी मेमोज आते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नॉट अटैच, तो एटलीस्ट आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि भाई आप मुझे बताइए तो सही कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या कौन से मैंने नहीं अटैच करे, क्योंकि मैंने ये अटैच करे हैं। व्हाई आई एम सेइंग सो, आई हैव सीन कई बारी ऑफिसर को उनके पोर्टल में बहुत सारे आपके अपलोड करे हुए डॉक्यूमेंट नहीं नजर आते हैं, तो maybe the portal has been designed in such a manner, I can't comment on that, but yes, I have seen that yes, officers are not able to download your documents, or even I have seen in my own few cases that whatever we have uploaded he is able to download something else only which we have not uploaded, and मैं ये भी चेक कर सकती हूँ वहां पे बैठ के कि उन्होंने जो डाउनलोड करा वो मेरे ऑफिस से अपलोड ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस वाले फैक्ट्स का या उस वाले नाम का कोई क्लाइंट है ही नहीं हमारे ऑफिस में कि हमने गलती से किसी और को अपलोड कर दिया हो। So all these errors are happening on the portal. So अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए बेस्ट विल बी कि आप जो भी वहां अपलोड कर रहे हैं आप उसका अपने पास एविडेंस रखिए। डेफिशिएंसी मेमो हम सबको पता है, अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो या तो आपके पास ARN आएगा, जिसको हम RFD2 बोलते हैं, या आपके पास RFD3 आएगा।
अब एक बहुत अच्छी जजमेंट आई है जो हम सब एसएससी के फेवर में भी है, और उन्होंने उसके लिए नोटिफिकेशन भी उन्होंने निकाला है 15/2021 डेटेड 18 मई को, जहां पे उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अब आपका जो टाइम पीरियड है फ्रॉम योर एक्नॉलेजमेंट और फ्रॉम योर सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन एंड द डे यू हैव रिसीव्ड योर डेफिशिएंसी मेमो, वो टाइम पीरियड आपके 2 इयर्स के टाइम पीरियड से बाहर रहेगा, यानी वो आपका लिमिटेशन पीरियड का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि डेफिशिएंसी मेमो इशू करने का भी एक टाइमलाइन है जो कि बहुत स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड है इन योर सर्कुलर 125 कि 15 डेज के बियॉन्ड, यानी अगर मैंने आज एप्लीकेशन फाइल करी है तो आज से 15 दिन के अंदर अंदर ही मेरे पास डेफिशिएंसी मेमो आ सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं आ सकता। और उसके बियॉन्ड अगर मेरे पास डेफिशिएंसी मेमो आता है तो आई कैन ऑलवेज चैलेंज दैट डेफिशिएंसी मेमो। डेफिशिएंसी मेमो से लेके मेरे जब से मैंने एप्लीकेशन डाली है और वहां से जब तक मुझे डेफिशिएंसी मेमो इशू नहीं होता, ये टाइम पीरियड मेरे लिमिटेशन में कैलकुलेट नहीं होगा। और अगर मेरा बियॉन्ड 15 डेज कोई डेफिशिएंसी मेमो आता है और उसकी वजह से मेरी एप्लीकेशन जो है वो टाइम बार हो रही है, तो आई कैन ऑलवेज चैलेंज दैट डेफिशिएंसी मेमो आल्सो। एक इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन है 54 सबसेक्शन 6 का, रेड विथ रूल 91 का, दोनों बात करते हैं प्रोविजनल रिफंड की। लॉ कहता है कि ठीक है, अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, दैट मींस आपके पास एलयूटी हुई, तो आप एलयूटी में डिक्लेरेशन देते हो कि आपने कोई डिफॉल्ट ऐसा नहीं करा है। उस केस में वट एवर अमाउंट यू आर अप्लाइंग फॉर योर रिफंड, यू आर एलिजिबल फॉर 90% ऑफ दैट रिफंड विद इन 7 days। तो दैट इज अ मैंडेट रिक्वायरमेंट। तो अगर आपका कोई डिलेड रिफंड है, कुछ भी है, तो आप ये वाले प्रोविजन का जरूर यूज कर सकते हैं कि ओके यू आर एलिजिबल फॉर 90% ऑफ द प्रोविजनल रिफंड, तो काइंडली ग्रांट मी दैट, एंड दैट टू विद इन 7 days। और जो बाकी का 10% बचता है उसको भी विद इन टाइमलाइन उनको फिनिश करना होता है। एंड अगर आप सर्कुलर देखेंगे तो उन्होंने 15 दिन तो एआरएन और डेफिशिएंसी मेमो और उसके अलावा 45 डेज का टाइम लिमिट दिया, यानी कि टोटल 60 डेज में आपकी रिफंड एप्लीकेशन वहां से डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। नहीं होती है तो यू आर ऑलवेज 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 eligible for the interest at the rate of 6% on the delayed period. अगर आप लिटमस टेस्ट पास नहीं करते हैं या कुछ ऐसे सिनारियो जब आपको रिफंड नहीं मिलना चाहिए था, या आपने इंसिडेंस किसी और के ऊपर ऑलरेडी पास करा हुआ है और अब आप उसके ऊपर रिफंड लेने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। वट एवर अमाउंट जो भी उसमें आपने रिफंड के लिए डाला है वो सारा का सारा अमाउंट वहां चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका लिटमस टेस्ट पास हो गया है, तो फिर वो आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। 60 डेज टाइम लिमिट वो है जो उन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखी है। तो दिस इज द फ्लो। अगर आपका रिफंड रिजेक्ट होता है तो रीजंस आपके पास रिकॉर्डेड होने चाहिए। शो कॉज नोटिस आएगा, उस शो कॉज नोटिस का आपके पास में 15 दिन का टाइमलाइन होता है। ये इकलौता है जहां आपके पास टाइमलाइन है और वो 50 डेज का ही, अदरवाइज 30 डेज का टाइमलाइन है या फिर टाइमलाइन प्रेस्क्राइब भी नहीं है। तो यहाँ पे 15 डेज का टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपको रिफंड का जो भी उन्होंने क्वेरी डाली है, जो भी शो कॉज डाला है, उसका आपको रिप्लाई करना है। और उसके बाद में उस रिप्लाई को देखते हुए या तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और आपके रिप्लाई को कंसिडर करते हुए आपके उस केस के अगेंस्ट order pass करेगा। Either he has to reject or he has to accept, and in case he is rejecting, so it has to be a speaking order और उसके ऊपर mention होना चाहिए। अगर आपकी डेफिशिएंसीज जब आती है, यानी कि जब कोई डेफिशिएंसी मेमो आता है, तो उसकी वजह से आपका रिफंड एप्लीकेशन जो है वो बाहर आ जाती है, यानी कि आपका प्रोविजन, आपको रिफंड वापस डालना पड़ेगा अगर आपको वापस रिफंड चाहिए या डेफिशिएंसीज आपको करेक्ट करनी है। तो उतने टाइम पीरियड के लिए जब तक आप दोबारा रिफंड डाल रहे हैं, आपका अमाउंट जो है वो रिक्रेडिट हो जाता है। तो आपके पास में टाइम है वेदर यू वांट टू फाइल द रिफंड अगेन और यू डोंट वांट टू फाइल। सो एनीवेज व्हाटएवर थिंग हैज बीन डन, तो दैट हैज टू बी टेकन केयर। बट आपका वो अमाउंट डेफिशिएंसी मेमो के साथ ही जो भी आपने अमाउंट रिफंड का मांगा था वो आपके क्रेडिट लेजर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले आपने जब रिफंड फाइल करी थी तो वहां से डेबिट होता है। जब आपका डेफिशिएंसी मेमो आता है या रिफंड रिजेक्ट होता है तो वापस वो आपका रिक्रेडिट होना चाहिए। ये एज पर प्रोविजन ऑफ रूल 93 भी यही कहता है। ऐसे कुछ केस जहां पे आपको लिटमस टेस्ट ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं पास करना, वो हमने देखते हैं सेक्शन 54 सबसेक्शन 8, यानी जीरो रेटेड सप्लाई, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगर आपकी वो सप्लाईज ही नहीं हुई है या आपने 77 के अगेंस्ट अब आप दोबारा पेमेंट कर रहे हो टैक्स की, कोई ऐसा इंटरेस्ट या टैक्स का जिसका आपने इंसिडेंस पास नहीं करा है, और कोई ऐसा क्लास ऑफ पर्सन जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा है कि ओके इस केस में हमें अनजस्ट एनरिचमेंट का टेस्ट नहीं देखना। अगर कोई रिफंड है एग्जिस्टिंग लॉ का, पुराने अर्स्टवाइल रिजीम का, तो वही मिलेगा।
कोई ट्रांजिशनल क्रेडिट का रिफंड आपको नहीं मिलेगा। इस पे हमने बहुत सारे जजमेंट्स देख ली हैं और इनफैक्ट हमने ट्रांजिशनल क्रेडिट के ऊपर भी हैव सीन प्लेथोरा ऑफ जजमेंट और बहुत सारे इश्यूज हैं जो इसके ऊपर अभी भी लिटिगेशन में है और कुछ इश्यूज हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं, तो वहां पे डिपार्टमेंट अपील पे है, तो स्टिल इट इज गोइंग अंडर लिटिगेशन ओनली। रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन सप्लाईज टू SEZ। हमें पता है कि जब हम SEZ को सप्लाईज देते हैं तो हमें उसको भी रिफंड मिलेगा बिकॉज दैट हैज बीन ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 16। कंपनसेशन सेस का रिफंड प्राइमा फेसी उन्होंने लॉ में लिखा था नहीं मिलेगा, बट वो अमेंड कर दिया गया है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 79 सर्कुलर में उन्होंने अमेंडमेंट डाल दिया है और अब आप उसका रिफंड ले सकते हैं। Bond LUT required for non-GST or exempted goods clarified that in case zero rated supply of non-GST यानी जिसके ऊपर GST नहीं है या exempted goods यानी वो GST के दायरे में है बट सेक्शन 11 या और किसी वजह से वो exempted है, तब ऐसे केस में आपको LUT या बॉन्ड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों केस में आपके पास में ITC होगा ही नहीं। तो आपका जो प्रोविजन है LUT लेने का वो बेसिक है कि आप उस ITC का जो एक्यूमुलेशन है उसको यूटिलाइज कर सके, या तो उसका रिफंड ले या उसको यूटिलाइज करे पेमेंट में। लेकिन जब आपके एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं या नॉन GST गुड्स हैं तो आपके पास में ITC आने का सवाल ही नहीं है। तो इस केस में आप इस प्रोसीजर से बच सकते हैं कि आपको LUT या बॉन्ड की जरूरत नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स हैं जो कि अब सारे के सारे मर्ज हो चुके हैं आपके मास्टर सर्कुलर 125 में। रिफंड अगर हम बात करें रूल 89 की तो वहां पे एक स्ट्रिक्ट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है रूल 89 सब रूल 4 का, जो कि कॉमन कैटेगरी की बात करता है, जीरो रेटेड सप्लाई चाहे वो SEZ हो या नॉर्मल एक्सपोर्ट्स हो। तो वहां पे आपका फॉर्मूला क्या है कि आपकी टोटल टर्नओवर मतलब एग्रीगेट टर्नओवर न्यूमरेटर विल बी योर एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय योर टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय योर नेट ITC। तो इस हिसाब से वो आपको प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। अगर आपका सब कुछ ही डोमेस्टिक कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ एक्सपोर्ट कर देंगे तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। इन केस देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेट तो यू विल गेट प्रोपोर्शनेट रिफंड ऑफ योर अमाउंट। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, 89 सब रूल 5, और बहुत बार आपने देखा इसका, आई थिंक 4 और 5 टाइम्स दे हैव अमेंडेड दिस सर्कुलर आल्सो, सॉरी दिस फॉर्मूला आल्सो, एंड इस फॉर्मूला की वजह से ही उन्होंने जो है सर्विसेज को बाहर करा है। यहीं पे इस रूल में आके उन्होंने सर्विसेज को बाहर करा है। 54(3) के अंदर सर्विसेज का कोई जिक्र नहीं है, वहां वर्ड इनपुट एज ए जर्नल सेंस में यूज हुआ है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टर्नओवर डिवाइडेड बाय योर टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय योर नेट ITC, यहाँ तक तो समझ में आता है, माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये फॉर्मूला अपने आप में डिफेक्टिव है। आई एम सेइंग दिस ऑन ओपन फोरम बिकॉज नेट ITC आप रिफंड एप्लीकेशन कब भर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड की, एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, ये लॉ में लिखा है। दैट मीन्स अगर मुझे मार्च की एप्लीकेशन फाइल करनी है तो पहले मेरे पास मार्च की सारी रिटर्न्स अपडेट होनी चाहिए, तभी मैं मार्च की रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकती हूँ। जब मैंने रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी है और मैं ऑलरेडी अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करके आ चुकी हूँ, तो फिर ये मेरे को वापस माइनस टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड ड्यूटी वापस क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पे मैं अपने इन्वर्टेड ड्यूटी की टर्नओवर जो ऑलरेडी डिस्क्लोज है डिवाइडेड बाय माय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय नेट ITC, वो मेरा एक प्रोपोर्शनेट निकलता है, बट उसमें से मुझे माइनस करना है अगेन उस रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का टैक्स जो भी मैंने दिया है। So there is a gap between this formula, the way they have designed this formula, the way they have designed the application form, and the way their wordings in the law has been prescribed. अगर हम 89(4) की बात करें तो नाउ वहां पे एक चेंज आया है अगेन विथ 16/2020 नोटिफिकेशन डेटेड 23 मार्च। वहां पे उन्होंने क्या कहा, हमारी अभी तक फॉर्मूला था रिफंड अमाउंट क्या होएगा आपका, नेट ITC मल्टीप्लाइड बाय योर एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय योर टोटल टर्नओवर। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर को कैसे लेना है ये अब सरकार बताएगी हमें, और उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट टर्नओवर किसको लेंगे। उनके हिसाब से कुछ लोग हैं जिन्होंने इस प्रोविजन का मिसयूज करा है और उनको लगता है कि जो अमाउंट आप अपने एक्सपोर्ट टर्नओवर में दिखाते हो या जो अमाउंट आप अपने इनवॉइस में दिखाते हो वो एक एलिवेटेड अमाउंट होता है। सो व्हाटएवर, नाउ दे हैव सेड कि ओके हम आपके टर्नओवर उसी को मानेंगे कि जो या तो आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस के अंदर जो अमाउंट आ रही है या सिमिलर गुड्स अगर आप डोमेस्टिकली सप्लाई करते उसके प्राइस का 1.5 टाइम्स। एग्जाम्पल लेट्स से मैंने इनवॉइस बनाया 100 रुपीज से, सेम गुड्स अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में 60 रुपीज में बेचती हूँ तो 1.5 टाइम्स मतलब 90 रुपीज, 60 into 1.5 मीन्स 90 रुपीज। तो माई एक्सपोर्ट टर्नओवर विल बी रिड्यूस फ्रॉम ₹100 to 90 रुपीज। क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, मुझे नहीं पता।
एंड अगेन विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 96P, जहां आपने मुझ पे मैंडेट कर दिया कि मेरे पास वो पैसे आने ही आने चाहिए, तो मैं एलिवेट करूं या मैं जैसे मर्जी अपने इनवॉइस बनाऊं, अल्टीमेटली मुझे जितने पैसे बाहर से आने वही तो मेरी एक्सपोर्ट टर्नओवर बनेगा. सो व्हाई दिस restriction is again beyond my understanding, but yes, they have made it mandatory. Wide notification number 16/2020 dated 23rd March, जहां पे उन्होंने बोला है कि नहीं, अब आपका ये इस तरीके से कैलकुलेट होगा. अब मैं डोमेस्टिक सप्लाई नहीं करती, कोई बात नहीं, वो कहते हैं आप ही हमें बताओ कि किसका आपके जैसे सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर हम उसकी कैलकुलेशन से ले सकते हैं. तो अब आई मीन दिस इज वेरी वेरी अनफेयर प्रोविजन. हो सकता है मेरा मार्केट एक्सपोर्ट के अंदर ही उस पर्टिकुलर गुड्स का हो. हैंडीक्राफ्ट्स बहुत बड़ा एग्जांपल है, पश्मीना और भी बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका डोमेस्टिकली इतनी सेल नहीं है, और हम उनको फॉरेन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए वो बहुत वायबल प्रोडक्ट है, एंड वी आर एबल टू फेच सम गुड अमाउंट ऑफ मनी इन माय ग्लोबल मार्केट. सो टुडे यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट that okay, if I'm getting something, let's say a product I'm able to sell for 5,000 rupees in the domestic in the global market, which I may not be able to sell for even 2,000 rupees in my domestic market, maybe because people are that product is not very much famous, or people don't have the demand for these kind of product. And handicraft is a very very good example. We have seen that whenever we move to some hill station, or if we move to foreign countries, we have seen that there are not many people who have great appreciation for Indian handicrafts. That may not be sold at that particular amount for which we are able to sell them in the global market, and we may not be able to sell them at the same market in my domestic market. But now, anyways, this provision says that okay, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में उसको उतने का नहीं बेच पा रहे हो, तो हम तो उस जो भी आपका प्राइस हो रहा है, हम तो उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 टाइम्स, और वही हम आपका रिफंड देंगे. एंड अगेन द ब्यूटी ऑफ दिस चेंज, टोटल टर्नओवर के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. टोटल टर्नओवर तो हम 100 रुपीज से कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन्स 100 और 90 का जो डिफरेंस है वो मेरे डिनोमिनेटर में आएगा. ऊपर तो 90 हो जाएगा, नीचे 100 ही रहेगा. तो मेरा अपने आप में जो है रिफंड वो है श्रिंक हो जाएगा. इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं. एडजस्टेड टर्नओवर का कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है. नेट आईटीसी हमें पता ही है, जो भी बचा हुआ रहेगा वो हमारा इसमें ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा. ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये क्वांटिटी है, ये रेट है और ये अमाउंट है. अब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे मैंने अमाउंट को कैलकुलेट करा. अब पुराना और नया, अगर मैं पुराने की बात करूं तो पहले मुझे इसी अमाउंट के ऊपर जो रिफंड कैलकुलेट होके आ रहा था वो मेरा 3,37,500 है. विथ न्यू प्रोविजन, with new formula where we have restricted my export turnover with respect to 1.5 times of the domestic turnover, वहां पे मेरा वही refund 3,03,000 है. So that means there is a reduction of a good amount of almost more than 10%, I should say. Refund has been reduced. तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि जेन्युइन आपका जो एक्सपोर्टर है ये उसके लिए एक सेटबैक है, बिकॉज नाउ हिज रिफंड विल बी कर्टेन्ड, एंड वो हमेशा उसका पैसा जो है वो क्रेडिट लेजर में अननेसेसरी ब्लॉक पड़ा रहेगा. और ये वाला प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ रूल 89 यूज करने वालों के लिए है. सो अगेन आप एक डिस्पैरिटी कर रहे हो, क्योंकि जब आप 96 में जाते हो वहां तो ऑटोमेटिक रूट है, वहां ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आपको 1.5 टाइम्स कैलकुलेट करना है या क्या करना है. सो दैट मीन्स एक तरफ से आप चाहते हो कि सब कोई रूल 96 में जाए, और अगर लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी के पास में पुराना पड़ा है तो वो तो यूज कर सकता है 96 में, बट हो सकता है किसी के पास उतना एक्यूमुलेशन नहीं हो या उसकी वैल्यू एडिशन ज्यादा है उसके प्रोडक्ट में, और लेट्स से व्हाटएवर द रीजन में भी, जिसकी वजह से उसको वायबल नहीं है. अगर जिसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों है तो उसके लिए हो सकता है कि व्हाटएवर आईटीसी है मैक्सिमम उसका कंज्यूम हो जाता हो डोमेस्टिक मार्केट में ही, और उसके पास एक्सपोर्ट के लिए इतना नहीं बचे क्रेडिट, तो वो क्या करेगा. तो आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि भाई आपको ये फॉर्मूला लेना है या ये फॉर्मूला लेना है. बट इस फॉर्मूला को देखते हुए ये समझ में आता है कि उनका इंटेंट यही है डिपार्टमेंट का कि मोर एंड मोर पीपल शुड गो फॉर ऑटोमेटिक रूट, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने 10 तरह की रिस्ट्रिक्शंस और लगा दी है. वैसे भी हमें पता है कि जब हम रिफंड फॉर्म पोर्टल पे जाते हैं, पोर्टल के ऊपर, तो हमारा रिफंड कैसे कैलकुलेट होता है. हमारी 3 अलग अलग वैल्यूज है. एक जो आपने फॉर्मूला से लेके आए, उसके बाद एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड इज बीइंग फाइल्ड, और तीसरा टाइम ऑफ द रिफंड फाइलिंग, यानी उस महीने के अंदर जो कितना क्रेडिट आपके पास में पड़ा है. तो इन्हीं सब से जो भी बेयर मिनिमम होगा या इन तीनों का जो सबसे लोवेस्ट होगा उसका आपको जो है वो रिफंड मिलता है. तो एनीवेज आपका रिफंड जो है वो रिस्ट्रिक्ट ही होना है.
Sir, this is very interesting question. When the officer can issue deficiency memo and when they can issue SCL. Deficiency memo, Shah sir, can be issued within the timeline of 15 days from the date of receipt of the application. और जब डेफिशिएंसी मेमो का टाइमलाइन चला जाता है तो यूजुअली दे इशू एससीएन एंड एससीएन के ऊपर में कोई टाइमलाइन नहीं प्रिस्क्राइब है. एससीएन कैन बी इशूड एनी टाइम. एससीएन से वैसे भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं होती है, यानी कि आपको वापस से फाइल नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ उस एससीएन का रिप्लाई देना होता है. Another question is, new formula is applicable for refund application date or for export invoice date? A very $1,000,000 question, sir. But all these provisions which are in favor of department, they always seek them that they are applicable from the date they have been made applicable, and unke hisab se. See, as per my understanding is that they all should be made applicable for any refund that pertains to the period after this notification has been issued. That means post March 2020 refund. But they says no, whatever application you are filing post March 2020, they are making these provision applicable. If you don't abide by them, they will reject. Then you have only left out is your appeal part only. Amount of B would be reduced by earlier refund claim. Sorry, I couldn't understand your question, Mr. Hitesh. Circular number 20 has given example on 150 formula in which total turnover is also restricted. Okay, I have to see this example, but as far as what I have seen, maybe. Okay, I'll just confirm this, Virasha. I will confirm this. But as far as what I have seen is, I had this impression that they have not restricted the total turnover. So definitely, I'll see to it, and I'll revert back. But Mr. Hitesh, I'm not able to understand your question, so you have to be more elaborate. Okay, one interesting thing is that whatever your total quantum of refund is there. So in case only one relief is that you are able to adjust is as per your wish. Like you want to adjust it against complete IGST or CGST or SGST or in any proportion, that is still allowed. The order is not being prescribed, so you can still you utilize it as per your provision. So these are certain clarification that has been issued by various circulars and notifications, which I have tried to summarize over here. And there is one clarification with respect to your difference of some amount in your GST invoice, which you are showing in your GSTR return or GST portal, and what you are showing in your shipping bill. So lower of these two values has to be taken care, and this has been clarified in circular 37. Now, one ambiguity has been raised. So they have said that, okay, this lower value will be taken care of. And that was with respect to difference because of some exchange rate fluctuation, because we all know that at custom, by which they will be calculating your invoice value for the sake of shipping bill, they have a 15 days window. For 15 days, the currency rate is fixed. But when we are raising an invoice, we are taking care of the currency rate from the RBI only, and which is changing every day. So there may be a difference of some amount, and in that respect, they have issued this clarification. But then there has been an ambiguity whether FOB value or CIF value has to be taken care or no. And again, Delhi Custom has issued a clarification that in case your CIF value is there and you have an agreement in such a manner that the other party sitting outside India will be one who will be bearing all the cost of freight and insurance and other things, and you are going to reimburse, you are going to get them back in your invoice value, by way of your invoice value, then you are eligible. Then you are eligible to claim the complete amount as a turnover amount, and as per that turnover, you will be eligible to claim the refund also. But that has been misinterpreted by this provision, and there they says, okay, in case there is these kind of situation, still we will be taking the FOB value only, because in shipping bill you have to mention FOB value also. Restriction of the error, that we have to see that yes, when we are making when we are punching the data, जब हम GSTR 3B फाइल करने हैं, तो please be careful कि आप जो भी export की turnover है, zero rated supply की turnover है, उसको table 3(1)B में ही डालें,
अगर आप 3(1)B में नहीं डालेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग बेशक आपका टेबल 6 से GSTR 1 का करेक्टली फाइल्ड है, आपकी शिपिंग बिल में भी सारी डिटेल करेक्टली फाइल्ड है, क्योंकि आपका 3(1)B में नहीं होगा तो वो आपको नहीं मिलेगा रिफंड, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने एक और सर्कुलर निकाला था जहां पे उन्होंने खुद से क्लेरिफाई करा है कस्टम ने कि ठीक है, ऐसा कोई केस होगा विद पेमेंट में तो हम कंसोलिडेट फिगर देखेंगे 3(1)A B C D की, कि इन सब में मिला के हो सकता है किसी ने उसको एग्जाम में डाल दिया, किसी ने उसको नॉन GST में डाल दिया, एक प्रोसीजर लैप्स ही तो है। तो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो भी उसमें लिखा होगा वो मेरा मैच करना चाहिए मेरे पोर्टल के साथ। बट अगेन ऐसा क्लैरिफिकेशन बहुत सारे हैं बट अपडेटेड नहीं है डिपार्टमेंट, और बहुत सारी जगह ये सारी चीजों का भी उनको they are not following the procedure that has been prescribed by their own department also. Clubbing of 2 financial year has been made applicable by circular number 135 only after the Delhi High Court judgment in the case of Pitambara books. Now you are able to club 2 financial year also, which was earlier restricted. Refund of ITC shall be restricted. Again 125 has clarified कि ठीक है, अगर कोई आपका GSTR 2A में नहीं आता है इनवॉइस तो बाकी बचे हुए इनवॉइस आप अपलोड कर दीजिए और आप उसका रिफंड ले लीजिए। बट अगेन 135 सर्कुलर से वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं, अभी आपका जो 2A में आ रहा है वही मिलेगा। अगेन ए ड्रैकोनियन प्रोविजन। 2A के अंदर तो फिर मेरे पास रिलैक्सेशन था, पहले 20% का, फिर 10% का, फिर 5% का। अभी आप यहाँ मुझे बोलते हो कि जो 2A में आएगा वही मिलेगा रिफंड, तो आप कैसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लॉ से? मतलब जो लॉ में लिखा है उसके बियॉन्ड आप एक सर्कुलर से, एक नोटिफिकेशन के रास्ते से, और ये तो नोटिफिकेशन भी नहीं है, सर्कुलर का रास्ता है, अब सर्कुलर के रास्ते से मेरा रिफंड कैसे मना कर सकते हो? आई मीन दीज ऑल आर द प्रोविजन which shows that what kind of misuse of the power is being done by the department, and just to safeguard the interest from few of the persons who are making misuse of the provision, you cannot punish the bona fide assessee also. I mean, you have to differentiate between a bona fide assessee and a assessee who is actually misusing the provision. But this provision is again a draconian provision which says कि ठीक, अभी जो GSTR 2A में आएगा उसी का रिफंड मिलेगा, चाहे आपको 36(4) के अंदर कुछ भी एडिशनल आपको अलाउड है या नहीं है। एप्लीकेंट को 2A के अंदर एनेक्चर में अब HSN या अभी भी ये लोग SAC ही यूज करते हैं, जबकि अभी सर्विस के लिए भी HSN कोड ही है स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 99। बट एनीवेज अब वो भी अगेन पैरा 6 ऑफ योर सर्कुलर 135 में उन्होंने मैंडेट करा है कि आपको जो भी है वो उसके अंदर आपको HSN भी लिख के देना है एनेक्चर B के अंदर, यानी जो आपकी सर्विसेज है। आपकी सारी रिटर्न्स फर्निश हो जानी चाहिए तभी आप फाइल कर पाएंगे। ऑब्वियसली दैट इज व्हाई आई हैव सेड दैट कि 89(5) का जो फॉर्मूला है वो अपने आप में डिफेक्टिव फॉर्मूला है। LUT आपके पास में साल शुरू होने से पहले ही होनी चाहिए। देयर वाज एन एक्सटेंशन और एक सर्कुलर था बहुत पुराना 37 2018 का, जहां लिखा था कि इन केस अगर कुछ डिले हो जाता है या आपने अप्लाई करी और टाइम पीरियड के बीच में जब तक वो आपको फाइनल अप्रूव होके आ रही है और आपका एक्सपोर्ट हो गया तो उसको हम कंडोनेशन देखेंगे फैक्ट टू फैक्ट बेसिस, बट अदरवाइज आपके पास में साल शुरू होने से पहले आपकी LUT होनी चाहिए। नेट ITC आपको पता ही है, उसमें उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि उसके अंदर ट्रांजिशनल क्रेडिट नहीं हो सकता। LUT का टाइमलाइन उस टाइम पे जो था वो एक्सटेंडेड था, सो वी हैव केप्ट दिस स्लाइड दिस पॉइंट इंटैक्ट कि हो सकता है किसी का अगर केस है वो तो वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। 2 years रेलेवेंट टाइम पीरियड था और वो फर्दर आपका एक्सटेंड हुआ था नोटिफिकेशन से जो 30 जून तक करा था, पैरा 6 था। उसके बाद में 35 नोटिफिकेशन आई थी जहां पे उसको 30 जून तक एक्सटेंड करा था। और अगेन एक एम्बिग्विटी है क्योंकि इस साल अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जहां पे उसने एक्सटेंशन दिया है वहां पे उसने क्वाजी जुडिशियल और नॉन क्वाजी जुडिशियल दोनों एस्पेक्ट को दिया है। सो दैट मींस मेरी डेडलाइन ऑफ रिफंड भी उसमें आती है। बट लास्ट टाइम पे जब वो उनकी एक्सटेंशन थी तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, तो उसकी वजह से रिफंड आएगा या नहीं आएगा उस दायरे के हिसाब से अगर हम देखें तो देयर इज स्टिल एन एम्बिग्विटी, बट अदरवाइज उसमें टाइम पीरियड की एक्सटेंशन उन्होंने नोटिफिकेशन से ही निकाली। 96 हम सबको पता है ऑटोमेटिक रूट है, दैट मीन्स इसको हम रिबेट का रूट बोलते हैं। जब आपको टैक्स पे करना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में अगेन आपको 96 ही वापस भेज देता है रूल 89 के पास में कि ओके अगर आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट करा है विद पेमेंट ऑफ IGST तो आप ऑफिसर के पास जाओ, आप सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ और आपको कस्टम वाला ऑटोमेटिक रिफंड नहीं देगा क्योंकि कस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अगर यही बात गुड्स के लिए कहें तो गुड्स में कहते हैं ओके अगर आपने विद पेमेंट ऑफ IGST गुड्स को एक्सपोर्ट करा है तो हम आपको
विद इन 7 to 10 डेज आपका रिफंड प्रोसेस हो जाता है और हम आपको रिफंड ऑटोमेटिक रूप से आपके अकाउंट में उसको हम क्रेडिट कर देंगे, प्रोवाइडेड आपका GSTR 3B, GSTR 1 और आपके शिपिंग बिल का डेटा मैच करना चाहिए। दैट मीन्स आपने जो अमाउंट का टैक्स का अमाउंट डाला है वो आपके शिपिंग बिल में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, GSTR 1 के टेबल 6A में भी दिखना चाहिए और वही अमाउंट आपके टेबल 31B ऑफ योर GSTR 3B भी दिखना चाहिए। अगर इनमें से कहीं पे भी कोई गैप होगा तो आपका रिफंड स्टक हो जाएगा। GSTR 1 के टेबल 6A में अगर सारी मैंडेट रिक्वायरमेंट योर शिपिंग बिल डेट और कोड और ये सब नहीं होगा तो भी आपका रिफंड जो है वो रुक जाएगा। पावर है उसके पास विथहेल्ड करने का, अगर कोई आपका इस टैक्स रिजीम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इस टैक्स रिजीम का रिफंड जो है वो इसी टैक्स रिजीम की लायबिलिटी के लिए विथहेल्ड हो सकता है। अगर आपकी कोई पुरानी एक्साइज की या सर्विस टैक्स की लायबिलिटी है तो उसके अगेंस्ट में वो इसको विथहेल्ड नहीं कर सकता, और अगर आपका फेवर में हो जाता है तो आप उसको वापस वो आपका रिलीज कर सकता है। और विथहेल्ड भी उतना ही अमाउंट करेगा जितना आपका टैक्स अमाउंट ड्यू है, उसके ऊपर में वो नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूल 96 सब रूल 10 का, जिसके ऊपर अभी हमने देखा बहुत सारे DGI के DRI के नोटिस भी आ रहे हैं। रूल 96 सब रूल 10 अपने आप में बहुत लिटिगेटिव है क्योंकि ये 5 बारी अमेंड हुआ है अलग अलग टाइम पे, जिसमें से 4 बारी जो इसकी अमेंडमेंट है वो अगेंस्ट रेवेन्यू है और रेवेन्यू ने ही अमेंड करा है। 4 times they have amended it in such a manner कि वो बिल्कुल अलग उसकी इंटरप्रिटेशन है। Finally they were able to implement it and they were able to amend it in a manner which they wanted to। और वहां पे उन्होंने अब बोला है अगर आपने कुछ बेनिफिट्स लिए हैं, नोटिफिकेशन नंबर 48, नोटिफिकेशन नंबर 40, 41, 78, 79 ऑफ कस्टम्स, तो आप 9610 आपको बाहर करता है ऑटोमेटिक रूप से। यानी कि वो कहता है कि जब आपने ये सारे बेनिफिट लिए हैं तब आप विद पेमेंट ऑफ IGST एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से आपने ऑलरेडी उस इनपुट्स पे या उस प्रोक्योरमेंट पे टैक्स नहीं पे करा, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन नंबर 40 यूज करा है तो आपने मार्जिनल अमाउंट पे करा है। अगर आपने 78, 79 यूज करा है तो आपके पास आउटराइट एग्जेम्पशन है उसमें कस्टम्स की और IGST की, आपने उस पर नहीं पे करा। तो इन सब सिनारियों में जब आपने ऑलरेडी टैक्स पे नहीं करा तो हम आपको विद पेमेंट IGST यूज नहीं करने देंगे। ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने 96 सब रूल 10 से डाली है, जो कि अगेन अपने आप में लिटिगेटिव है और बहुत सारे केसेस इसके पेंडिंग है, क्योंकि बहुत सारे DRI और DGI के नोटिस इस रिस्पेक्ट में आए हैं। जिनने रिफंड लिया है इसका, उनके पास में नोटिस आ रहे हैं कि ठीक है आपने एररनेस रिफंड है, आप इस रिफंड को या तो वापस करिए या आप उसको टैक्स पे करिए और उसका आप वापस से क्रेडिट लीजिए। अभी इसमें एक अमेंडमेंट और करा है इन्होंने, अगेन विद नोटिफिकेशन नंबर 16/20 ही उन्होंने, वहां पे उन्होंने कहा है कि अब आपके पास चॉइस है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये प्रोविजन अपने आप में एक बैडली फ्रेम्ड प्रोविजन है, एक बैडली ड्राफ्टेड प्रोविजन है, जिसकी आप सजा जो है फाइनली जब तक केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं हर्ड होता आप कुछ नहीं कह सकते। तो उन्होंने अब आपको एक ऑप्शन दिया है कि ठीक है आपके पास अब एक ऑप्शन है, आप अगर ऑटोमेटिक रूट यूज करना चाहते हो तो आप इन सब नोटिफिकेशन का बेनिफिट तो ले सकते हो, बट सिर्फ कस्टम प्रोविजन के लिए। यानी कि आप IGST पे करिए, IGST पे करके आप उसके बाद में आप उनको लेके आइए गुड्स को, और उसके बाद आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन भी पड़ा है आप उसको यूटिलाइज करते हुए विद पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर सकते हैं। बट आप अब जो एग्जेम्पशन लेंगे इन सारे नोटिफिकेशन में 48 में, 77 में, 78 में, वो आप लेंगे सिर्फ और सिर्फ कस्टम की। आप वहां पे IGST की नोटिफिकेशन, IGST की एग्जेम्पशन नहीं लेंगे अगर आपको रूल 9610 यूज करना है तो। 96B एक नया रूल इंसर्ट करा जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपको अपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के अगेंस्ट भी आपको अपने रेमिटेंसेस रिसीव हो जाने चाहिए विद इन द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब अंडर फैमा, दैट इज 9 मंथ्स। अगर आपको उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर नहीं आता है तो आपके अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 और 74 एज द केस में बी, वो एज एन एरनेस रिफंड आपसे वापस ले लिया जाएगा विद इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब भी डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है वो सुओ मोटो 74 में करता है, वो 73 में नहीं करता, यानी विलफुल सप्रेशन की बात करता है, और वो आपसे हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 24% की डिमांड करता है। अगेन इसमें एक प्रोवाइजो से आपको रिलीफ दिया गया है 96B में कि ठीक है अगर आपका नहीं आया उस टाइम पीरियड तक तो हम आपको उससे वापस ले लेंगे विद इंटरेस्ट।
अगर आपका उसके बाद में पैसा आ गया या कोई टाइमलाइन जो आपने एक्सटेंड लिया था आरबीआई से, उस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा आता है, नहीं आया तो आपको रिफंड देना है, पर उसके बाद में चलो रिफंड दे दिया, उसके बाद में पैसा आ जाता है, तो आपको उसका वो भी मिल जाएगा, वापस से आप ले सकते हो। और एक और उन्होंने रिलीव दिया है कि अगर कहीं ऐसा कोई सिनारियो होता है कि आपने आरबीआई को रिक्वेस्ट डाली और आरबीआई ही आपको वो राइट ऑफ करने का परमिशन दे देता है कि ठीक है आपको वो पैसा नहीं आएगा तो भी हम आपका बेनिफिट नहीं लेंगे, तो उस केस में भी आपको रिफंड वापस करने की जरूरत नहीं। और अगर जब आपके पास सेल प्रोसीड आ जाती है, चाहे फुल आए चाहे पार्ट आए, अगर फुल आएगी तो आपको फुल रिफंड अलाउड हो जाएगा, जो आपका वापस गया था आप उसको वापस ले सकते हैं। पार्शियल आए तो आपको प्रोपोर्शनेट रिफंड मिलेगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपके कॉस्ट बनेगा। और आपको इसके लिए आपको उनको वापस से एक प्रूफ देना होगा, एक एप्लीकेशन डालनी होगी कि ये मेरी सेल प्रोसीड्स है, ये मेरी आ गई है, और या तो वो विद इन टाइमलाइन जो भी एक्सटेंडेड टाइमलाइन थी या उसके बाद आई है, तो आपको उसका सारा डिटेल उनको देना पड़ेगा। ये एक अंडरटेकिंग है जो उन्होंने इसी नोटिफिकेशन से इम्प्लीमेंट करी थी, जो कि अब फिनेंस बिल 21 के बाद जाके इम्प्लीमेंट होएगी, जब वो उसको एक्सेप्टेंस सारे स्टेट दे देंगे। अभी तक वो प्रेसिडेंट असेंट हो चुका है, बट स्टिल इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो बात करता है एक डिक्लेरेशन की कि 96B के अंदर अब आप डिक्लेरेशन देते हो कि अगर मेरे को मेरी रेमिटेंस नहीं मिलेगी तो मैं आपके पैसे जो मुझे रिफंड में मिले हैं मैं उसको विद इंटरेस्ट वापस करूँ। ये टाइम पीरियड है जो फेमा की बात करता है 9 मंथ्स टू 15 मंथ्स, जो जुलाई 31 जुलाई तक जो भी एक्सपोर्ट हुए हैं उनके लिए एक्सटेंशन 9 मंथ्स की जगह 15 मंथ्स है। अगेन सर्कुलर नंबर 27 आरबीआई का, ये आरबीआई का सर्कुलर है क्योंकि फेमा इज गवर्न, वहां पे ये फेमा एक्ट से गवर्न है और इसके अंदर आपको आरबीआई की परमिशन लेनी होगी। अभी तक जो भी हुए हैं हम उसके ऊपर एक 5 मिनट्स का छोटा सा क्वेरी सेशन ओपन कर रही हूँ, सो दैट वट एवर वी हैव डेल्ट विद, सो दैट आई कैन नाउ कम अप टू दिस रूल 96। अब जो हम बात करेंगे वो रूल 96 की बात करेंगे। अभी तक हमने रूल 89 रूल 96 के दोनों बेसिक प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया है और उससे रिलेटेड रिफंड के प्रोविजंस को भी हमने डिस्कस करा है। So whether your question is, so whether refund claimed under that rule for earlier tax period shall be deducted from the credit ledger, वो अपने आप ही डिडक्ट हो जाता है। जैसे ही आप रिफंड फाइल करते हो वो ऑटो डेबिट एंट्री हो जाती है, आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो मैक्सिमम एक्सीड कभी करेगा ही नहीं क्रेडिट लेजर से, क्योंकि 3 कैपिंग आपकी लगी हुई है। मिस्टर विराज शाह, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। 3 कैपिंग्स है, आपका जो भी क्रेडिट बैलेंस है फॉर्मूला के हिसाब से उस मंथ के लिए या जिस दिन आप फाइल कर रहे हैं रिफंड एप्लीकेशन, इन तीनों का लोवेस्ट ही आपको मिलेगा। सो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वेदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिट लेजर एट द बिगनिंग ऑफ टैक्स पीरियड, नो सर, देयर इज नो प्रोविजन। अब ओपनिंग बैलेंस और उसका अब अगर आप देखेंगे, आप एक बार ट्राई करिएगा, अगर आप कभी किसी मंथ में कोई रिवर्सल करते हैं, लेट्स से आपका इस मंथ में 1000 रुपीज का आईटीसी है जो आपने अवेल करा है, आपके पास एक्यूमुलेटेड आईटीसी 10,000 है और आपको अगर 2000 रुपीज आईटीसी रिवर्स करना है, तो पोर्टल ऐसा नहीं देखेगा कि वो ओपनिंग से माइनस करेगा, वो पहले इस मंथ के 1000 रुपीज को खत्म करेगा, उसके बाद आपके जो एक्यूमुलेटेड है उसमें से लेगा। और इसलिए क्योंकि आपका इस मंथ का बैलेंस जीरो हो गया, क्योंकि जो भी 1000 रुपीज था वो आप रिवर्स कर चुके हैं, अगर आपको इस मंथ की एप्लीकेशन भरनी है तो वो आपको एप्लीकेशन भी नहीं भरने देगा। तो यहाँ पे फीफो लीफो कुछ नहीं है, वो उसी मंथ को सबसे पहले एडजस्ट करता है, ओपनिंग बैलेंस का कोई यहाँ पे प्रोविजन है ही नहीं पोर्टल पे। As on today, which refund period application can be applied in case of inverted duty structure considering the benefit given in the extended due date? Extended due date for inverted duty structure, you have to calculate month wise. So let's say if I talk about whatever extension has been given by Supreme Court. So Supreme Court has said that, okay, whatever your due dates were appearing or approaching, so there are two different extensions. One was issued on 8th March that has been with respect to certain procedures on quasi judicial proceedings only. But sorry, on judicial proceedings only. But this new notification which is extended, so this talks about non-quasi judicial also or quasi judicial proceedings also. So here we can say that yes, okay, refund
timeline also has been extended. So let's say if I talk about in case if my application was getting time barred in the month of April, April 21, that means for the April 19. So April 19 application can still be filed with this extension in case of an inverted duty structure. And similarly, in case of a refund also, April 19 application can be still filed. Whether refund under export of services be filed for consider. Sir, again, this is okay. Consideration received in foreign currency by Indian company from the foreign tour operator for supply of ticket booking services under instruction from. Sorry. What is this question? Whether refund under export of services be filed for consideration received in foreign currency by an Indian company from foreign tour operator for supply of ticket booking services under instruction from foreign office of tour operator. Sir, I'm not able to understand your question. If you can speak up your question, that will be more easier for me. मैडम इसमें क्या है एक्चुअल में कि आउटसाइड इंडिया की एक कंपनी है, वो इंडिया में मैन पावर सर्विस लेती है, जैसे टिकट बुकिंग करवाने का सर्विस देती है, तो उसके रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी उनको मिलती है इंडियन कंपनी को, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में फॉल होगा। तो टिकट बुकिंग कहाँ की कराती है? क्योंकि टिकट बुकिंग के अलग प्रोविजंस हैं। आपने बोला मैन पावर की सर्विस लेती है, इंडियन टिकट बुकिंग कराते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी कंसीडरेशन रिसीव वहां पे होता है मैडम। जो टिकट बुकिंग सर फॉरेन करेंसी कंसिडरेशन के लिए बात नहीं है ना। अगर मैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज देखूं तो मेरी 5 कंडीशन है वहां पे, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सबसे पहले मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ बनेगा। अब आपने बोला वो टिकट बुक कराते, तो कहाँ की टिकट बुक कराता है? अगर वो लेट्स से दिल्ली टू लंदन की टिकट बुक करवाता है मुझसे, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली बन जाएगा, क्योंकि इन केस ऑफ एयर टिकट माय प्लेस ऑफ एम्बार्केशन in that flight is considered to be place of supply. So that is the reason I have asked you. और अगर वो फॉरेन में बैठा है बंदा और वो मुझे लेट्स से लंदन टू जर्मनी की टिकट की बुकिंग कराता है या आउटसाइड इंडिया की टिकट बुक कराता है, तो मैं यहाँ पे ये प्रोविजन ले सकती हूँ कि अगेन आपका डिपार्टमेंट का यहाँ झगड़ा आएगा, वो कहेगा कि आप इंटरमीडिएरी और आप कहोगे आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस दे रहे हो, बट स्टिल इस केस में क्योंकि रिसिपेंट भी बाहर है और सप्लायर भी बाहर है, आप स्टिल सेफगार्ड होके बच जाओगे। बट अगर आपने टिकट लेट्स से इंडिया से ओरिजिन हो रहा है और लेट्स से इंडिया में ओरिजिन हो गया, अगर इंडिया में ही खत्म हो रहा है तो आपके पास कोई सेफ गार्डिंग नहीं है। इंडिया से शुरू होके बाहर जा रहा है तो भी आपके पास में एक इशू आएगा कि जहां प्लेन में आप एम्बार्क करते हो वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बनता है, उसी के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। तो आई मीन more facts are required in this aspect, but with this limited facts I think एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के प्रोविजन में आप नहीं फॉल करा पाओगे। डिस्पाइट द फैक्ट आई एग्री कि आपके पास में रेमिटेंस जो है वो फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी में आ रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएरी के केस में भी यही होता है, आपके पास फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी आती है बट स्टिल वो आपको इंटरमीडिएरी के अंदर फॉल कराता है, एक्सक्लूजन में फॉल कराता है, 13(2) की डिफॉल्ट लाइन में नहीं लेके जाता। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई। Whether export turnover to be restricted to domestic on total price or on the basis of price for each category of product in case the numerous products which are exported as well. Viraksha, you have to clarify your question. I'm not able to understand your question, please. You are asking whether export turnover to be restricted to 150 of domestic price on total basis. No, individual goods has to be checked. You cannot say in totality, I am comparing with my total domestic supplies. No, each and every product has to be seen individually. So if this is your question, so it has to be seen on individual basis, not on a consolidated basis. एक क्वेश्चन रह गया बीच में, कैन पीओ डिमांड पेमेंट वन? कौन सा सर? Can proper officer demand payment of tax not paid by supplier from recipient by issuing RFD 08? Can PO deduct? No. RFD 08 is with respect to a refund we are talking of. अगर आप रिफंड की बात कर रहे हैं तो रिफंड में उसको कैसे पता चलेगा कि उसने सामने वाले ने टैक्स पे करा या नहीं करा? वो तो कहता है कि 2A में जो आ रहा है मैं उस पे दूंगा, तो 2A में तो दिखता ही नहीं है कि उसने टैक्स पे करा या नहीं करा, तो वो आपसे कैसे डिमांड रेज कर सकता है? वो मैडम वो एनेक्सर भी जो फाइल करते हैं तब वहाँ पे जो जीएसटी नंबर लिखा होता है तो वहां से वो चेक करते हैं कि वो सामने वाले 3B फाइल किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। वो नहीं कर सकता ना सर, 2A लिखा है, लॉ में लिखा है 2A में 3B का कोई मतलब ही नहीं है ना सर, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कहाँ से ये नेक्सस लेके आ रहे हैं।
लॉ में लिखा है मेरे 2A में आना चाहिए, 2A का कोई कनेक्शन नहीं है 3B से, वो आपका 2B में आता है नजर। नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ कि एनेक्स जब रिफंड फाइल करते हैं, जब एनेक्सर बी फाइल करते हैं हम, बराबर, उसमें वो इनपुट क्रेडिट का सब लिखा होता है, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल जीएसटी नंबर लिखा होता है हमारे सप्लायर के। बिल्कुल। तो वो सप्लायर ने जीएसटी भी फाइल नहीं किया हुआ है। नहीं कर सकता सर, वो वही मैं बोल रही हूँ आपको कि हाँ मेरा उसने सप्लायर ने फाइल करा या नहीं करा, मेरा 2A में आ रहा है ना, और लॉ कहता है कि 2A में लॉ तो वैसे भी नहीं कहता 2A में, लॉ अगर आप 16(2) की कंडीशन पढ़े तो वो कहता है 180 दिन के लिए तो आपके पास प्रोविजनल है। ये तो रूल से उन्होंने रूट करा, और अब उन्होंने 16(2) में एक डबल एक का जो एडिशन करा है नए लॉ के साथ में, वहां से उन्होंने एडिशन करा है कि ठीक है वो उसका मिलना चाहिए, टैक्स जमा होना चाहिए, और वो जब वो रिटर्न फाइल कर देगा तभी आपको मिलेगा। वो जो अमेंडमेंट्स वो लेके आए हैं, बट वो अमेंडमेंट अभी आनी होनी चाहिए ना, लॉ के अंदर अभी इनकॉर्पोरेट होनी बाकी है वो अमेंडमेंट्स। अगर मैं उनकी बात भी करूं तो वो मेरे से कैसे, मेरा रिफंड कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि आपको उतने अमाउंट का आईटीसी एलिजिबल नहीं देगा रिफंड के लिए, बराबर। बराबर बराबर। तो वो आपका रिक्रेडिट होगा, उसके पास में पावर तो है ही नहीं ना। आप ये देखिए, आपको सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में उसके पास में क्या पावर है, आपका रिफंड एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। एक्सेप्ट होगा तो आपके बैंक में पैसा जाएगा, रिजेक्ट अगर वो करता है तो उसको वो अमाउंट रिक्रेडिट करना है। उसके अलावा उसके पास कोई और पावर नहीं है। अगर वो उसके अलावा कुछ और करता है तो यू कैन ऑलवेज रेज अ क्वेश्चन ऑन हिज पावर। और कोई पावर नहीं है उसके पास में, वो उसको विदहेल्ड कर सकता है, लेकिन अगर कोई प्रोसीडिंग उसी एक्ट में आपके अगेंस्ट चल रही होनी चाहिए, सामने वाले ने टैक्स पे नहीं करा, उसके लिए वो आपका उस क्रेडिट अमाउंट को विदहेल्ड भी नहीं कर सकता। अगर उसको रिवर्स कराना होगा तो वो आप ही को फोर्स करके रिवर्स करा सकता है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसके पास लीगली कोई पावर नहीं। यही सवाल है आपका? यस। आई होप आई हैव क्लैरिफाइड। और मैडम, यस क्लैरिफाइड। और जो 150% वाला नया जो वो फॉर्मूला है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहा हूँ वो डोमेस्टिकली, तो मुझे कौन दूसरे सप्लायर एस सिमिलरली प्लेस सप्लायर का कुछ टर्नओवर मुझे, तो वो कहाँ से मिलेगा हमें? सर यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, वो आप ही को बताना है। वो कह रहे हैं हम तो आप ही से पूछेंगे, आप जिसका नाम दोगे हम उसको मान लेंगे। अब आपको ढूंढना है कि आपके जैसा कौन प्रोडक्ट बनाता है, वो कितने में बेचता है, आप किसकी डिटेल देना चाहते हो उसको। तो ये आप ही के ऊपर उन्होंने ओनर्स डाला है कि आप नहीं करते हो, कोई बात नहीं, तो फिर आप हमें बता दो किसका लेना है। और यूजुअली वो इसके साथ एक और चीज करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा आप नहीं कर रहे हो ना, आप बोलते नहीं तो अपने परचेज प्राइस को ले लो। गेटिंग माई पॉइंट? यस यस। वो कहते हैं भाई आपने जिससे परचेज करा उसने आपको सेल करा ना डोमेस्टिकली, यस। तो वो, मैन्युफैक्चरिंग हो तो हाँ जी सर, मैन्युफैक्चरिंग हो तो सॉरी आई एम नॉट एबल टू गेट। मैन्युफैक्चरिंग हो तो मैडम, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। नहीं मैं बोलती सर कुछ भी हो, सप्लाई, सर जीएसटी में तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं है ना, बिकॉज टैक्स किस पे, सप्लाई पे है। तो इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वो कहते हैं वो मैन्युफैक्चरर है तो भी, तो वो भी तो आपका बिजनेस कर रहा है, वो भी तो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आप अपना नहीं देना चाहते हो, आप कहते हो जी मेरे पास कोई डोमेस्टिक मार्केट में कोई और बंदा नहीं है, तो वो सीधा सीधा सिंपल सा बोलते कि ठीक है अपने परचेज प्राइस को कैलकुलेट कर लो। ठीक है सर, लेट्स मूव फर्दर। यस। I hope I'm able to clarify the issues and I hope I'm able to clarify the provisions. यस मैम, डेफिनेटली। Thank you, sir. अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बारी मैंने देखा है कि रूल 96 का यूज करने के बावजूद हमारे रिफंड जो है वो रिफंड जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, या उनमें टाइम गैप है, या उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्यों आती है? अगर आप अपने आइस गेट के पोर्टल पे चेक करेंगे, जहाँ पे आपके जीएसटीएन से इनवॉइसेस जो है वो रेमिटेंट होते हैं, तो वहाँ पे स्टेटस आता है। आपको अपने जीएसटी पोर्टल में भी उनका स्टेटस दिखता है कि कौन कौन से जो इनवॉइसेस है जिनका डेटा वो वहाँ पे ट्रांसफर कर चुके हैं, और कौन कौन से इनवॉइसेस है जिनका वहां से जो डेटा है वो अगर कुछ विदहेल्ड हुआ है या कोई रिफंड नहीं आया तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो उनके कुछ एरर कोड्स हैं, SB000 से लेके SB006 तक। 000 का मतलब है कि सब कुछ वैलिडेट तो प्रॉपर हो गया है, बट स्टिल कोई ना कोई टेक्निकल अभी भी ग्लिच है, या कोई PFMS का एरर है, या कोई और एरर है जिसकी वजह से ये आपका रिफंड अभी भी रुका हुआ है।
अगर 01 का है तो आपने शिपिंग बिल डिटेल गलत डाली है, 02 है तो आपकी ईजीएम जो है वो फाइल नहीं हुई है, तो आपको अपने CHA को कांटेक्ट करना पड़ेगा। 03 है तो आपका GST एंड मिसमैच है। 04 है तो इसका मतलब ये आपका डुप्लीकेट इनवॉइस है, ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है जो आप उसको दोबारा आपने रेमिट करा है। SB05 है तो इनवॉइस नंबर गलत है, दैट मीन्स आपने जो इनवॉइस नंबर जीएसटी के पोर्टल में डाला है और जो इनवॉइस नंबर आपके शिपिंग बिल में जा रहा है वो दोनों अलग अलग है। पहले होता भी था कि हम एक कमर्शियल इनवॉइस बनाते थे और एक जीएसटी का इनवॉइस बनाते थे, उसकी अलग अलग सीरीज होती थी, बट विद टाइम एवरीबडी हैज स्ट्रीमलाइन दिस, तो अभी ये एरर भी कम हो गया, बट अदरवाइज इस एरर की वजह से बहुत सारे रिफंड रुके हुए थे। SB06 है कि गेटवे ईजीएम अवेलेबल नहीं है। ये आपका तब होता है जब आपका एक आईसीडी से आपके दूसरे मेन तक जाता है, जैसे नावा सेवा से पहले वो अलग अलग आईसीडी में इकट्ठा हो रहा है, एक उसका ईजीएम बनता है, उसके बाद आपका मेन ईजीएम बनता है, तो इसके बीच में अगर कहीं कोई गैप रह गया है तो उसकी वजह से आपका SB006 एरर दिखाएगा। अब एरर तो आ गया, अब आपको इस एरर के लिए क्या करना है, सो वो आई हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट। अगर 01 एरर आता है, क्लेरिकल है, तो आप उसको टेबल 6A में जाके आप उसको अमेंड कर सकते हो, और फॉर्म 9A यानी अमेंडमेंट टेबल 9A में भी आप उसका जाके अमेंडमेंट कर सकते हो। 02 है तो आपको अपनी शिपिंग लाइन को अप्रोच करना पड़ेगा कि वो ईजीएम को इमीडिएटली फाइल करे। 03 है तो आपको जो शिपिंग बिल की मिसमैचिंग, अगेन वो आपको अमेंडमेंट फॉर्म 9A में जाके अमेंड करनी पड़ेगी। 04 ऑब्वियसली डुप्लीकेट है तो आपको वो वहां से आप कुछ नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर आपका वैलिडेशन नहीं होगा। 05 अगेन आपका इनवॉइस वैल्यू का मिसमैच था, वो भी मिसमैच आपका GSTR 1 के अंदर है या कहाँ है, वो आपको करेक्शन करना पड़ेगा। 06 एरर होता है डिसकंटिन्यूस ऑफ ट्रांसपेरेंस कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, जो मैंने आपको बताया कि एक मैकेनिज्म होता है कि बिल ऑफ लेडिंग एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर इंटीग्रेटेड विद ईजीएम शुड बी फॉलोड, और इसके लिए भी सीबीआईसी ने एक सर्कुलर निकाला है 8/18, जहां पे उन्होंने उसका पूरा डिटेल बताया कि आपको ऐसा कोई मैटर है तो हाउ यू हैव टू गेट रिजॉल्व ऑफ दिस इशू। और बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहाँ पे आईसीडीज है, उस केस में आपको ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आईसीडी से जब आपका ईजीएम एक गेटवे ईजीएम बनता है, उसके वजह से कई बार आपका जो डेटा है वो प्रॉपर्ली मैप नहीं होता या प्रॉपर्ली आपका पंच इन नहीं होता है। अगर मिसमैच एरर है तो ये टाइपोग्राफिकल एरर है, और GSTR 1 और शिपिंग बिल के बीच में एरर है, और इसके अंदर भी वेरियस नोटिफिकेशन है, जो कि लास्ट नोटिफिकेशन 22/20 अगेन हैज बीन एक्सटेंडेड आई थिंक अप टू 31 दिसंबर 2020 तक के सारे के सारे शिपिंग बिल्स या इनवॉइस डेटेड 31 दिसंबर 2020 तक को अब आप इनकॉर्पोरेट करके आप इसके पूरा जो प्रोसीजर है एक कॉन्करेंस टेबल बना के, और आपको कैसे इसको कस्टम में लेके जाना है, आप इन नोटिफिकेशन की हेल्प से अपने कस्टम में जाके आप इन एरर्स को करेक्ट करा सकते हैं। और अगर आपका SB005 एरर कोड है तो आप इसको इस तरीके, जो उसमें वहां पे पूरा तरीका दिया हुआ है कि आपको कैसे अमेंड करना है, क्योंकि एनी मिस्टेक इन द शिपिंग बिल कैन नॉट बी अमेंडेड। आपके अगर शिपिंग बिल में कुछ भी गलती होगी और अगर आपने एजीएम फाइल कर दिया है, एक बार एजीएम फाइल होने के बाद उसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको इसीलिए ये उन्होंने बोला है कि आप एक ऑर्डिनेंस टेबल बना के दो कि ये मेरा इनवॉइस नंबर था, ये मेरे से गलती हो गई इस शिपिंग बिल में हो गई और इसका इतना मुझे रिफंड मिलना चाहिए था, या कई बार आपके आईजीएसटी के अमाउंट में गलती रह जाती है। लेट्स से आपने डालना था $1,000 लेट्स से 75,000 रुपीज बनता है, पर वो आपने वहां पे 1,000 ही रह गया, तो वो आपको 1,000 का रिफंड दे देगा। तो अब जो बाकी आपको 77,000 का रिफंड मिलना था, बट आपके पास 1,000 का रिफंड आया है, तो अब जो बाकी 76,000 का रिफंड है उसके लिए भी आप अलग से एक एप्लीकेशन डालेंगे। इसी में सारा प्रोसीजर दिया होगा कि आप कैसे उसके एप्लीकेशन डालेंगे। वन टाइम आप एप्लीकेशन डालेंगे जो भी आपको करेक्शन करनी है, ताकि वो जो बैलेंस अमाउंट है और उस बैलेंस अमाउंट की डालेंगे, यानी कि 76,000 से ये एप्लीकेशन जाएगी, ताकि आप वहां से उसका रिफंड जो है वो क्लियर करा सके कस्टमर से। कई बारी हम आईजीएसटी पे करते हैं बट गलती से हम उसके ऊपर एनए डाल देते हैं, तो हमारा वहां पे भी रिफंड रुक जाता है, तो इसको भी उन्होंने वेरीफाई करना है। अगेन सर्कुलर नंबर 8/18 दिया हुआ है कि आप कैसे जाके अपने कस्टम पे जाइए, वहां पे उनको आप एविडेंस दीजिए कि ये मेरा GSTR 1 है, ये मेरा 3B है, 3B में इतना टैक्स मेरा इससे पे हुआ है जो कि मेरा मैप करता है इनवॉइस वैल्यू से, गलती से ये मेरा एक टिक होना रह गया, तो अब आप इसको फाइनलाइज कर दीजिए। तो ये सारे एरर्स को भी वो दूर कर सकते हैं। अब हम आज बात करते हैं 000 की, यानी कि मेरा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया है बट स्टिल मेरा रिफंड जो है वो स्टक है। उसके लिए हो सकता है कि उसने वेब बॉन्ड करा हो या हमने टिकी ना करा हो, जो हमने ऊपर भी गलती हो सकती है। अगर ऐसी कोई गलती है तो उसको ठीक करिए, या अगर मेरा बनता ही नहीं रिफंड वहां से मैंने
विद पेमेंट की जगह विदाउट पेमेंट करा हुआ था, बट यहाँ गलती से मैंने विद पेमेंट टिक कर दिया, तो मेरा दोनों जगह से रिफंड रुक जाएगा। तो इसलिए आपको ये एरर भी ठीक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वहां पे भी ये आपका एरर रिफ्लेक्ट करेगा, ये यूटिलिटी को लेने नहीं देगा। अगर मल्टीपल शिपिंग बिल के अंदर मल्टीपल इनवॉइस है तो हो सकता है उसमें से किसी एक इनवॉइस के अंदर गलती हो गई हो। Composite rate of duty drawback has been claimed for that shipping bill. The transitional period जो बीच में था उसके बीच में भी आपको ये सारी दिक्कतें आई थी, बट अब वो ट्रांजिशनल पीरियड हट चुका है, तो उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिफंड अमाउंट 1000 से नीचे है तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है। ये कुछ एरर कोड्स हैं जिनके आपको रीजंस मैंने दिए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने इनको भी करेक्ट करा सकते हैं। 96A बात करता है कि आपका एक टाइमलाइन है विद पेमेंट के अंदर कि आपको विद इन 3 मंथ्स जो है आपका एक्सपोर्ट हो जाना चाहिए पोर्ट से। अभी कोविड की सिचुएशन में भी हमने देखा कि बहुत टाइम तक हमारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड थे, तो आपका आइदर सामान पोर्ट पे ही पड़ा है या वो ट्रांसपोर्ट भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन, या डिलेड एक्सपोर्ट हुआ। तो इन सारी सिचुएशन में उन्होंने कहा अगर आपका विदाउट पेमेंट है और वो विद इन टाइम लिमिट या एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में भी आपका एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो आपको उसको विद पेमेंट करना पड़ेगा, और आपको एज प्रोविजन 96 एप्लीकेबल होते हैं उसी तरीके से आपको उसका सारा रिफंड देना होगा। रिक्रेडिट, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको रिफंड एलिजिबल नहीं है, तो वो आपके अकाउंट में रिक्रेडिट होगा, और उसके लिए आप उसको ऑफिसर को जो है PMT 03 करके एक ऑर्डर इशू करना होगा। रिफंड अगर आपका डिलेड होता है बियॉन्ड 60 डेज, तो आपको 6% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 से नोटिफाइड है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मिलेगा। अगर यही आपका इंटरेस्ट किसी ऑर्डर से आता है तो 9% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये मैंने इसमें लिखा है। अगर किसी भी ऑर्डर जो कि आपकी अपील से या फर्दर प्रोसीडिंग से आपको ये रिफंड मिलता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%। पीरियड डिले का था और कितना अमाउंट टेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 55 की, जहां पे एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों को ही रिफंड अलाउ करा गया है, एंड व्हिच सेज कि ओके दीज आर लाइक रिफंड टू योर यूनियन बॉडीज, embassies etc which are or your tourist, so they have a special provision। अगर हम एम्बेसीज और यूएन बॉडीज की बात करें तो हम पहले ये जो लॉ में टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब थी वो 6 मंथ था फ्रॉम द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, जिसका आपको रिफंड फाइल करना है। अब उसको बढ़ा के उन्होंने 18 मंथ्स कर दिया, क्योंकि ये वाली प्रोविजन थी बहुत लेट स्टार्ट हुई है एम्बेसीज और यूएन बॉडीज के रिफंड की। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फाइल करना होता है, जिस मंथ का आपको रिफंड फाइल करना है उसी करनी होती है, अदरवाइज आपको रिटर्न फाइल करने का कोई मैंडेट नहीं है। आपको एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, प्रेस्क्राइब फॉर्म है, आपको जिस महीने का रिफंड चाहिए उसी महीने आपको उसकी स्टेटमेंट भी डालनी है इनवर्ड सप्लाईज की, आपको किस किस का रिफंड चाहिए GSTR 1 में, और RFD 10 इसके फॉर्म है। इसके लिए मैंडेट कंडीशन है, आपको जो रिफंड ऑफ टैक्स पेड है वो तभी मिलेगा जब आपकी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, यानी कि इनवर्ड सप्लाईज आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन से आनी चाहिए, दैट मींस आपने उसके ऊपर टैक्स पे करा होना चाहिए, आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, उस टैक्स इनवॉइस पे आपका नाम, UIN नंबर, आपका GSTN तो होता नहीं, आपका UIN होता है ऑफ द एप्लीकेंट, मेंशन होना चाहिए। सच अदर रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन, यानी कि वो आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अगर काउंसिलेट ने अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी सामान लिया है तो उसके ऊपर उसको रिफंड एलिजिबल नहीं होगा। वो जो भी आपको रिफंड चाहिए उसका यूसेज जो है वो स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और स्ट्रिक्टली फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन योर पर्सनल यूज होना चाहिए। अगर कहीं कोई इनकंसिस्टेंसी है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से आपका इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, ये एक कॉमन पार्लेंस की बात है। अगर यहाँ पे भी कुछ आपको लगता है कि कोई ऐसा है रिफंड जो आपको नहीं मिलना चाहिए, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर में क्रेडिट होगा, और उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होगी उसके अपने नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। टूरिस्ट के लिए हमने बात करी, टूरिस्ट हु आर लिविंग इंडिया अलोंग विद दैट गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स, तो उन गुड्स के ऊपर जो वो साथ लेके जा रहे हैं वो उसकी पोजीशन में होने चाहिए उस टाइम पे, सिर्फ उन्हीं गुड्स के ऊपर में उसने जो भी GST पे करा है उसका उसको रिफंड मिलेगा। सेक्शन हैज बीन नोटिफाइड बट functionality is yet to be started at the airport. These are the circulars जहां से हमने ये references लिए थे, so I'm just summarizing them by the combination of financial
फाइनेंशियल ईयर्स अब आपको अलाउ हो गया है। अक्यूमुलेट कॉमन पार्लेंस में अगर मैं समझूं तो ट्रेडर की बात करते हैं, यानी मैंने आज गुड्स इकट्ठे करे, टुडे लेट्स से द गुड्स वर हैविंग रेट ऑफ टैक्सेस एट 18%, बाय द टाइम देयर इज अ रेट चेंज, जैसे आज ही नोटिफिकेशन आने हुई आ जाती है कि नहीं इस गुड 18% पे है, अब बेचूंगी मैं 12% पे, ऐसा कोई सिनारियो होता है कि फर्दर कभी रेट चेंज की वजह से आपके पास एक्यूमुलेशन होती है, तो इस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि दिस प्रोविजन इज आल्सो गोइंग टू बी चैलेंज्ड इन सम और द अदर हाई कोर्ट्स वेरी सूनर और लेटर, बिकॉज you cannot have a distinction of these kind. आपके लॉ में ऐसा कहीं कोई मना ही नहीं है, बिकॉज लॉ इज वर्डेड एज पर वर्डिंग सप्लाई। यहाँ पे आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज को ही स्पेसिफिकली बाहर कर रहे हो, आप एक डिस्टिंक्शन लेके आ रहे हो, जबकि जीएसटी लॉ में ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। जीएसटी लॉ में सेक्शन 7 जो कहता है वो कहता है योर लेवी इज सर्विस, so but by this provision you are making a distinction between the other categories and you are separating the trading has been bought with circular 135, जहां पे बोला था कि ये जो मैंने रेड से हाईलाइट करे हैं, रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्सेस विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 77, अगर आपका कोई प्रोविजनल असेसमेंट के बाद आपका फाइनल असेसमेंट आता है, या रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर ग्राउंड और रीजन, इन सब केस में आपको रिफंड तो मिलेगा, लेकिन कैसे होगा? अगर आप वो आपको क्रेडिट के फॉर्म में रिफंड मिलेगा, अगर आपने कैश लेजर को यूज करा था तो ही उस उतने अमाउंट का आपको कैश वापस मिलेगा। सो द way you have used while making dischargement of these kind of payment, in similar manner you will be getting in the refund also. This given to you as refund, हम refund की I think some technical issue at Archana. I'm so sorry. I think there was some this connection issue. Can you just let me know from which slide my connection was not there? Last 2 minutes, madam. Last 2 minutes. Last slide only. So I'll just. My screen is. Were you able to see my screen? Yes, ma'am. Okay. So I think we have seen these provisions. Hello. Yes, ma'am. ये नहीं आया. Am I audible? Yes. Okay, so I think we have. Huh? Earlier, so we have seen these provisions now. ये जो notification. Okay. So notification 16 से हमने देखा कि domestic supply को 1.5 देना है. That we have seen. So this is the gist of all the circulars and notification issued under IGST, CGST or customs, which I have tried to put it at one place so that it can be of some use to you all. And these are few important relevant case laws which you can always see and refer in case you want to refer to any of these provisions. And with this, I'm opening the house for the question and answer. चैट में मैडम एक क्वेश्चन आया है. I post it again, madam. No, yeah, I'm not able to see. Yes. Shipping bill has FOB value. This is only what I have answered you now. There is a circular from Delhi Custom where they have said in case you have your agreement where the person will be bearing CIF value, then you are eligible to claim refund on CIF value. But yes, that's why I've said that the department is interpreting 125
circular in a wrong manner, where they have said when there is a difference between your invoice value and shipping bill and your GSTR1, lower of them will be taken care of. But in case you have charged and it is with payment of taxes and you have charged tax on the complete value, then he should give you refund on the complete value, whatever amount you have discharged under IGST. Okay. Members may raise their queries. So I'll just stop my screen now. Yes. Yes. So I hope I'm able to do some kind of justice to your whatever knowledge you had about the refund and the related provisions under CGST and the rules applicable there too. And in case of any queries, I'm waiting for you all so that you can post your queries. I hope you all enjoyed the session. It should not be like all clear. Yes, madam. Certainly, madam. I think all the query has already been raised, ma'am. Okay. I request Kunjar sir to propose vote of thanks. Kunjar bhai? Yes, madam. When GST was introduced, it was termed as good and simple tax, and one of the officer at that time or minister at that time told that it is a child's play. A child can click a button and GST return can be filed and etc. 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 But you have rightly said at the beginning itself, it's a Ghar Sansar Tyag tax, and who knows better than our spouse? It is still a child's tax only. We all are the child of God, and it is our tax only. And at the beginning, my colleague termed your profile as a brief profile, but it started from accountancy till the litigation level. So it is a very vast profile and very vast level of experience from your end, and that experience has enriched us in this topic of refund, and many practical difficulty you have answered very quickly and very thoroughly, madam. And we really enjoyed your session. And on behalf of Navsari branch, I congratulate and I thank you for this wonderful session, and hope we will meet again, madam, on this platform. And that all depend on you. I hope you all enjoyed, and I hope that you all will be inviting me again on your branch on this forum. So it was really an honor and privilege for me to be here and to present whatever little knowledge I had on this topic. So it was really my privilege, and I thoroughly enjoyed it. Thank you so much once again to Navsari branch for connecting with me, for inviting me, and for giving me this wonderful opportunity. I'm highly. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. With this, I'll take leave, and I wish you all stay safe and stay blessed. This time too shall pass. Thanks. Thank you.